Okay, so firstly, thanks a lot, guys, for taking out time. Y'all are the exemption holders for the September 24 attempt inter CA taxation paper. And I'm extremely proud and happy to have hosted you guys on this little podcast that we are going to have, where a quick conversation is about a couple of things. What has been your lowest score so far in taxation? Let's get into your insecurities, right? सबसे highest score आपने क्या किया है? What are quickly the wrong things that you did in the previous attempt? What are the right things that you all did in this attempt, right? And the last one I think will be how did you motivated yourself, right? How did you motivate yourself across the attempts that you've taken, right? And there's something, I think Neil also has something interesting to share, because I had clearly done something very harsh and rude when he told me that he wants to defer attempt from May to September because he wasn't sure. I think he will speak about that incident. All right. Um, Lovely. Let's start with Rasesh. We will start that. Serge will be joining us in some time. I have few questions already written by my side, तो फटाफट से क्या है, मैं एक एक पूछूंगा. Okay, quickly everyone, just introduce your name, right? आप क्या करते हैं सबको पता ही है, and tell us your highest and your lowest score and the attempts that you've taken up till now. Okay, and I feel the more attempts you've taken, the better it is, because the more inspiring your story is going to be. Quickly, we'll start with Rasesh. Go ahead. Am I audible, sir? Yeah, you are very much audible. Go ahead. Okay, so good evening, sir, and to all my fellow panelists. Sir, at the very outset, a very happy Diwali and a New Year to you. And thank you so much for having me here. So, sir, this was my fourth attempt at the CA intermediate level. My lowest score in taxation was 31, and my highest score is 69. 31. Yes, sir. Oh, okay, and this was in which attempt? Sir, May 24. May 24. And And then, sir, November 23, it was 29. So, 2 mark increment in May 24. okay, okay. So that's 29. 29 say you've got 69. Yes, sir. That is crazy. And so did you drop in between, or what was it like? No, sir, I did not drop in between. The thing is that I had got an exemption in November 23 in accounts and in law as well. So in September, in May 24 attempt, I had to choose between two subjects. So I went with law and taxation. So this time in September 20, in September 24, so I gave law and taxation. So this time, luckily, group one got cleared. Okay, lovely. Next, quickly, Manushri, go ahead. You can speak. गुड इवनिंग सर दिस इज मनश्री साई दिस इज मनश्री और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और मेरा लोएस्ट स्कोर 39 था और हाईएस्ट स्कोर 75. Okay, and also mention your attempts. लोएस्ट स्कोर 39 मई 2023 में आया था Hmm. और हाईएस्ट स्कोर अभी सितंबर 2024. September 2024. Okay, fair. So you said 34, right? I'm so sorry. I'm at 39. 39. I forgot to mention that I've just discovered something, that I am an ADHD, right? So I have an attention span disorder. But yeah, I'll try to cope up with you guys as much as possible. और तुम लोग तो born ही ADHD हुए हो, माँ कसम. तुम लोग को तो क्या ही बोले, Gen Z लोग. Okay, so 39 to 75. This is crazy. Would love to deep dive into your journey, Manushri. And you've taken 3 attempts, right? Yes, sir. Lovely. ठीक है, done. Next, Neil, come on. Let's go with you. So firstly, thank you for having me here, sir. And this was my first attempt. So I scored 62 in first attempt because I deferred from May 24 to September 24. So my first attempt and I got an exemption, which is 62. Okay, so May was supposed to be your first attempt, but you Yeah. deferred it and you Mhm. made it your September as your first attempt. Fair. Yeah, yeah. So you've just got 1 score. Nice. Nilesh, तू बता फटाफट से चल. Nilesh, I can't hear you. I can't hear you. Unmute yourself. सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नवंबर 22 में हुआ था. ये मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट था और इसमें मैंने एग्जाम्पन 60 स्कोर किया था.
सबसे लोएस्ट स्कोर क्या था तेरा? 35, 35। और इस बार कितना है? 60. 60। लवली। एंड सहर्ष, we'll take your last. Hello, sir. Sir, this was my third attempt. और लाइक सबसे कम मार्क्स जो मेरे अटेम्प्ट्स में आते थे वो टैक्स में ही आते थे। लाइक ऐसे 40 के नीचे ही रहते थे, क्योंकि कितने थे मेरा आइडियली? सर 35 36 अराउंड रहते थे। और वो भी ओके। सिर्फ डी टी में, जीएसटी में इट वाज लाइक ऐसे 15 मार्क। और तो मतलब डीटी की वजह से स्कोर होता था, बट फिर जब जीएसटी पकड़ा तो मेरे को पता चला कि भाई जीएसटी में पावर है एग्जेम्पशन दिलाने की। तो या ओके, इस एंड बार देन व्हाट वाज योर 64, स्कोर? 35 एंड देन? 35 34 ऐसे रहता था, एंड इस बार इट वाज 64। 64। या आई एम श्योर योर पेरेंट्स आर आल्सो कंप्लीटली टेकन अबैक कि ये क्या सर हो गया भाई? मैं जब पेपर दे के आया तो मैं एकदम रो रहा था कि भाई ये अटेम्प्ट भी गया, क्योंकि टैक्स का पेपर, डीटी का पेपर एकदम। डिफिकल्ट था, हाँ। हाँ। तो आई वाज लाइक कि चलो जनवरी की तैयारी करते हैं, एंड सबसे पहले जीएसटी पकड़ के मैं स्टार्ट रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया। फिर रिजल्ट आया तो सीधे सक्सेसफुल पे नजर गई, बोला अरे चलो निकला एक ग्रुप। फिर दैट इज। पापा, मैंने देखा ही नहीं मार्क्स कितने हैं, मतलब चलो निकल गया ना, अब छोड़ो इसको। हाँ। पापा ने देखा एग्जामेशन है, मैं बोला आई होगी एडवांस अकाउंट्स में आई होगी। फिर पापा ने इट इज टैक्स, बोला है कैसे टैक्स कैसे हो सकता है? तो या आई थिंक इस टैक्स। बार अकाउंट्स में काफी लोगों का काटा यार, बहुत मार्क्स काटे अकाउंट्स में। इज दैट ट्रू? हाँ हाँ हाँ, मैं या। एक्सपेक्ट कर रहा था कि एग्जामेशन आएगी, बट नहीं। दैट्स ग्रेट। lovely. So those are your scores. Lovely. Now tell me one major thing, okay? And this is a question to all of you guys, and I want you all to quickly answer it. Raise your hands, right? If y'all have been those students जो सिर्फ डीटी के भरोसे गया टैक्स के उसमें, माना जीएसटी को कंप्लीटली इग्नोर ही किया उसने कि यार नहीं यार ये डीटी ही लाएगा मार्क्स। रेज योर हैंड्स। ओके, lovely. Okay, I think except Neil, everyone has done that. So now I want every one of you all to tell, because I think there are a lot of students out there who have done the same mistake, and I don't know why. Like पता नहीं उनको शायद खतरों के खिलाड़ी ही है ये लोग कि like this is heights of stupidity, but I don't know, for some reason I'm sure you have your own reasons to do that. Mention that reason. Why did you all do that? कि क्यों डीटी के भरोसे गए? एंड ऑल्सो मेंशन द रीजन दैट क्या वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा था? व्हाट वाज इट एक्चुअली अ डिसीजन दैट बैकफायर्ड इट, राइट? एंड देन टेल कि व्हाई वाज इट इंपॉर्टेंट टू टेक अप जीएसटी, राइट? सो लेट्स क्विकली गो देयर। ओके, फर्स्ट लेट्स जस्ट एड्रेस सिर्फ डीटी के भरोसे क्यों नहीं जाना चाहिए, या क्यों वो डिसीजन गलत है। सर तू ही बता फटाफट से। सर डीटी ना एक्चुअली पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, बट दैट इज वो जब, हाँ जब उसका पेपर आता है ना, आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है वहाँ पे, गिवन द टाइम पीरियड कि आपके पास कितना टाइम है सॉल्व करने के लिए। डीटी के भरोसे क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, एंड कौन सा पेपर कहाँ से आ जाए आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। आप कितना ही पेपर एनालिसिस कर लो, एबीसी एनालिसिस कर लो, नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। बट जीएसटी ऐसा है कि उसमें आप कंसेप्ट बिल्ड कर लिया, वो क्वेश्चन वैसा का वैसा ही उठ के आ सकता है जो कि आता है। मतलब पीछे इस बार का जो पेपर था, मैंने लास्ट से स्टार्ट किया था जीएसटी, एंड विद इन 1.5 आवर्स मेरा जीएसटी एकदम कंप्लीटेड था विथ एमसीक्यूज ऑफ डीटी एज ओके। वेल। एंड मैंने जीएसटी को पिछले अटेम्प्ट्स में काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया कि यार तो ये तो पहले दो अटेम्प्ट में सबसे पहला क्या अटेम्प्ट करता था, डीटी या डीटी जीएसटी? डी मैं जीएसटी पूरा ऐसे अंडर एस्टिमेट करके ही छोड़ जाता के ही था। जाता था? ओके। छोड़ता नहीं था, अंडर एस्टिमेट करके अंडर ये तो पढ़ ही एस्टिमेट, क्या लेंगे। ही मार्क्स ला के हाँ देगा था? हाँ। ओके। तो ये था। एंड बट दिस अटेम्प्ट व्हाट डिड यू अटेम्प्ट फर्स्ट? सर जीएसटी जीएसटी अच्छे से जीएसटी? पढ़ा। इतना जी कॉन्फिडेंस आ गया था हाँ वहां सर, कसम। हाँ अभी जब पेपर लवली। आएंगे ना तब उसमें आपको मार्क्स का बाइफरकेशन भेजूंगा, वो जीएसटी मेजर Yeah, by पार्ट the way, कवर I करेगा। want all of you all to put an RTI. I think Sarsh has already done. हम्म। I think Manushri will also do it. Neil is also going to do it. Guys, please, Nilesh and Rasesh. Okay, done that. Next, Neil, come on, tell me. नील ने तो मुझे लग रहा है कि वाइज ही था वो पहले से, इसलिए पहले अटेम्प्ट में पास हो गया वो। बट वी कैन गो टू मनुश्री नाउ। गो अहेड, टेल मी।
तो मेरे फर्स्ट 2 अटेम्प्ट मैंने सिर्फ डीटी के भरोसे दिए हैं, मतलब जीएसटी मेरे को कुछ नहीं आता होता था। और डीटी के भरोसे मैं इसलिए जाती थी क्योंककि जीएसटी मेरे को कभी समझ ही नहीं आया। मेरे को इतना अच्छा, वास्ट लगता था, इतना ज्यादा वास्ट कि डीटी मैं से बुक ज्यादा? मैं बुक उठाती थी, मैं बुक बंद कर देती थी कि मुझसे नहीं होगा। आई वाज लाइक कि मैं डीटी में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, पर मैं जीएसटी में अगर मैं कर भी जाऊँ ना, मैं मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं आंसर लिख पाऊंगी। तो डैम। दैट्स वाई कि मैं 2 अटेम्प्ट्स टीटी के भरोसे गई, लेकिन फिर उसके बाद इस अटेम्प्ट में मैंने जीएसटी जब वापस किया तो बहुत आसान हो गया था मेरे लिए। मतलब इस अटेम्प्ट में अगर मेरे को बचाया तो सिर्फ जीएसटी ने बचाया है। पहले 2 अटेम्प्ट्स में डीटी के भरोसे गई थी, इस और अटेम्प्ट में आप भी पहले जीएसटी। डीटी ही ऑब्वियसली अटेम्प्ट करते थे, और फिर क्या यस, है, जीएसटी, यस, एंड दिस अटेम्प्ट यू आल्सो डिड द सेम, यू यस, अटेम्प्टेड जीएसटी फर्स्ट? यस, यस। Oh wow, that's a big transformation, huh? And I just wanted to add one thing, right? That sometimes in CA it's not just about hard work; it's actually working in the right direction, right? And the reason shayad is bar, the result is a little different, is because you exactly did what was supposed to be done, and that was conquering your fears, where GST came into picture, right? Where you literally conquered it कि यार जो जो आप इग्नोर कर रहे थे उसको आपने सबसे पहले किया, सो कुडोस टू दैट। रशेश, व्हाट अबाउट यू? Sir, just to add what Manushri and Saharsh told, sir, there was a very big gap between what should be and what was actually being done. Approach में बहुत difference था, sir, because there was an element of inherent bias in the mind कि DT इतना बड़ा syllabus है और उसको complete करने में time जाएगा, so let's first do DT first। और DT को complete करने के चक्कर में सर हमेशा IDT ignore ही होता था, and उसके चक्कर में भी used to invest a lot of time in DT, but this time सर जितना टाइम हमने आईडीटी में इन्वेस्ट किया, इट वाज नॉट इवन हाफ ऑफ व्हाट वी डिड इन डीटी। एंड दिस टाइम ओनली आईडीटी हैज हेल्प्ड अस टू स्कोर एन एग्जामिनेशन बिकॉज डीटी पेपर वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट दिस टाइम। एंड इस बार सर 115 बीएससी की स्कीम का भी पूरा सब कुछ वहां पे था, एंड 20 मार्क का ऑप्शनल जो फर्स्ट मार्क जो 20 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन होता है इन डीटी, उसको करने में ही सर बहुत टाइम चला गया। मैंने उसको छोड़ के पूरा छोड़ दिया उसको, देन आई कंप्लीटेड आईडीटी। आई वाज लाइक पहले आईडीटी कंप्लीट कर लेते, फिर डीटी जो टाइम बचा विल डू दैट। सो आई डीटी पेपर छूटा भी है सर 10-15 मार्क का। सो दैट्स व्हाट इट वाज फ्रॉम माय साइड। आई थिंक दैट ऑल्सो ऑफन हैपेंस इज बिकॉज डीटी के भरोसे आप जाते हो, तो क्या पहले 10 मार्क का क्वेश्चन अगर नहीं आया तो वही कॉन्फिडेंस टूट गया तब कि भाई। पूरा मोरल डाउन था बिकॉज हाँ, इतना टाइम कंज्यूमिंग था वो 20 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन। इट वाज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। क्योंकि ऑलरेडी 50 मार्क का आप अटेम्प्ट करके जा रहे हो, उसमें भी 10 मार्क चले गए, तो फिर यू लिटरली एट द मर्सी के भाई अब तो लाइक लिटरली एज पे खेल रहा हूं मैं। सो दैट एग्जैक्टली सर। वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। lovely. Okay. So the wrong thing that you all did was clearly going on the bharosa of DT, which you all improved. Now the important part is that uh, how did you all identify that in this attempt के यार इस बार है ना थोड़ा प्रिपरेशन अलग करते हैं, ठीक है? एक बार कोशिश करते हैं कि जीएसटी को भी मौका दिया जाए, और वो समझते हैं। Like, how did that come into picture? Because what happens often with students is that when they keep, taking attempts, I clearly understand Neil is completely feeling irrelevant कि ये क्या फालतू discussion चल रहा है, right? But when you keep taking attempts, you actually start forming a pattern, and you actually start getting into your comfort zone कि जो करते आ रहे वही करते जा रहे हैं, and you are even more fearful of attempting things or topics which you have left before or which you have omitted before, right? Then what led in this attempt जहां पे आपको लगा कि यार करते हैं ना जीएसटी एक बार ट्राई, क्या पता साला एग्जेम्पशन आ जाए? सो आई वांट टू नो दैट जर्नी के दैट इन्फ्लेक्शन पॉइंट दैट यू कि आपने इसको मौका दिया एक बार। गो अहेड रसीश। सर इस बार May 24 के बाद तो नौबत ऐसी आ चुकी थी कि आई वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू से गुड बाय टू द कोर्स, बिकॉज इवन व्हेन आई टेक्स्टेड यू या आप आई भी शॉक रिमेंबर हो गए दैट। कि रसिक वाज स्टिल कंटिन्यूइंग। आई पुराने बॉसेस को बोल दिया था कि September 24 इज द लास्ट थिंग, देन वी ओके। विल स्टिक बैक टू व्हाट वी आर डूइंग। सर ओके। तो दैट्स व्हाट इट वाज। एंड सर वही सेल्फ डाउट कॉन्स्टेंटली आ रहा था सर कि दिस इज अ पैशन व्हिच वी वांट टू डू इट फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स, बट समथिंग, बिकॉज हमें एक प्रोफेशनल डिग्री चाहिए, वी वांट समथिंग एल्स इन लाइफ आल्सो टू बी अ प्रोफेशन, तो हम उसके लिए कर रहे हैं। सो एक कांस्टेंट सेल्फ डाउट होता था कि आर वी गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन और नॉट,
because none of the paths we were working on two different paths and कहीं भी कुछ achieve हो नहीं रहा था. So the first thing is मैंने certified copy सर मंगाई taxation की May 24 की, and पता चल गया कि IDT बहुत ज्यादा ignore हो रहा है. This can't be the approach this time as well, because sir I guess सिर्फ 58 days का time था after results Okay. for September 24. So 58 days में a lot had to be done, but एक चीज तो श्योर थी कि इस बार IDT के क्लासेस तो लेने ही पड़ेंगे. एंड IDT के क्लासेस सर I got it as soon as possible, and बाद में 9-10 days में सब लेक्चर्स देख लिए, एंड immediately started solving papers and writing practice was the approach this time. उसके बाद पता चला कि कितनी बड़ी गलती हमने की है, because of which we have got 4 attempts, but ठीक है सर, दे रहा है दुरुस्त है. So that's all the journey Fair. So went you through. went through your RTI papers and you realized that this is where I am lacking. Exactly, And sir. you accepted it and you started taking the rectified action, and you Exactly. enrolled for the course, and whatever happened happened. Rest is history. Of course. Lovely. This is great. This takes courage and definitely makes a lot of difference in your final output. So kudos to that. Manushri, I'd like to know your journey quickly. तो जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था May 23 में, मेरे को उसी टाइम पता लग गया था, क्योंकि उस वो वाला अटेम्प्ट में जीएसटी बहुत आसान था. मतलब इट वाज द इजीएस्ट पेपर. Yeah, मतलब that was the easiest. Yeah. दैट वाज द इजीएस्ट पेपर. उस अटेम्प्ट के बाद मुझे पता लग गया था कि आई कांट गो विद ओनली डीटी. मतलब जीएसटी भी मुझे करना ही है. और मैं अच्छा, मैंने सेकंड सबसे अटेम्प्ट, इजी पेपर में भी आपको जीएसटी नहीं आ रहा था. क्योंकि मैं कुछ करके ही नहीं गई थी सर. ओके ओके ओके. मुझे जीएसटी के फर्स्ट 4 चैप्टर्स का नाम पता था सिर्फ. अंदर क्या कुछ नहीं पता था. और उसके Damn. बाद तो मुझे चैप्टर के नेम भी नहीं पता थे. मेरा इतना बुरा हाल था जीएसटी में. तो फिर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया. उसके बाद मेरे को 50-50 था कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. एंड मेरा सिर्फ 39 स्कोर आया. मतलब अगर मैं टैक्सेशन पढ़ जाती ना, मेरा उसी अटेम्प्ट में क्लियर हो हो जाता. जाता. अरे डैम डैम. एंड तो दिस वाज 3 फिर अटेम्प्ट्स बैक. यस, उसके बाद आई सर्च्ड फॉर क्लासेस ऑन यूट्यूब. मेरे को एक और टीचर के मिले थे यूट्यूब पर लेक्चर्स. मैंने वो अटेंड भी कर लिए थे सारे. उसके बाद जब मैंने खत्म कर लिए, मैंने आफ्टर 1 मंथ मैंने दोबारा बुक्स उठाई. आई वाज अगेन ब्लैंक. मुझे कुछ नहीं समझ आया. आर मुझे यू सीरियस? सीरियसली सर, मतलब ये आईडीटी की क्लासेस आपने ले ली है? नहीं नहीं नहीं, यूट्यूब पे ओके, देखी थी यूट्यूब पे मैंने. देखी थी. ओके ओके. उसी टाइम आपने भी लॉन्च किया था, बट मैं ऑलरेडी हाफ कर चुकी थी. फिर मैंने सोचा मैं हम्म. उनके साथ ही कर लेती हूँ. अभी मेरे को फिर फेयर से स्टार्ट करना पड़ेगा. फेयर. मैंने उनके साथ कर लिया. अक्टूबर में या सितंबर के एंड में मैंने दोबारा देखा. मैं फिर से ब्लैंक. मेरे को ऐसा लगा था बस चैप्टर के नाम ही पता लग गया दोबारा. मतलब पहले कुछ भी नहीं पता था, बस आइडिया हुआ है. उसके बाद मैं डैम. आपके आपके यूट्यूब लेक्चर्स मैंने देखे दोबारा से. एंड मतलब मैंने आपके एग्जाम्शंस तक ही देख पाई थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था मतलब आपके लेक्चर्स देखने का, क्योंकि एग्जाम्स आ ही गए थे बस. मैंने एग्जाम्शंस तक देखा, और मैंने जितना देखा ना, मेरे दिमाग में छप गया था जीएसटी. एंड उस अटेम्प्ट में भी मैं जीएसटी उतना नहीं कर पाई थी, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने सारा लास्ट में देखा था आपने. हाँ. हाँ जी. तो फिर उतने करने पर भी ना, मैं 8 नंबर का क्वेश्चन कर लिया था मैंने जीएसटी का नवंबर वाले Oh, पेपर में. really? I एंड think I'll have to stop posting my content on YouTube now. नहीं, आपने उस टाइम वो फ्री स्टार्ट किया था हाँ हाँ. नवंबर करेक्ट. अटेम्प्ट के लिए. अच्छा, November 23. हाँ ओके. जी. हाँ हाँ. May करेक्ट करेक्ट. 24 मैंने स्किप कर दिया था, क्योंकि वो तो नवंबर मैं. 20 नवंबर 23 मेरा बहुत अच्छा हुआ था. आई वाज लाइक मैं ओके. पास हो जाऊंगी. और मैं टैक्सेशन में पास भी हो गई थी. 42 थे, बट कॉस्टिंग में वो रह गया था. दैट्स वाई फिर मैंने सोचा था मैं छोड़ दूंगी. बट उसके बाद फिर मैंने सितंबर की तैयारी कर ली थी. जब मैंने सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाई, मेरी ही गलती थी थोड़ी बहुत. ओके. सो दिस वाज ग्रेट. दिस वाज ग्रेट इनसाइट के लास्ट में तूने जीएसटी करना सोचा. यू यू गॉट लकी. मुझे पहले अटेम्प्ट में पता लग गया था कि जीएसटी के बिना नहीं कर सकते टैक्सेशन. ओके फाइन. हाँ, पेपर देने के बाद ही. हाँ करेक्ट. जी. आफ्टर यू गॉट 39 एंड यू रियलाइज्ड के वो हो सकता है करके, राइट? यस दैट वाज इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ. यस यस. बट सेकंड सेकंड अटेम्प्ट भी. सेकंड अटेम्प्ट में मैंने ट्राई किया था कि मैं जीएसटी, पहले मैंने लेक्चर्स ले लिए थे कि मेरे को समझ आ गया, मेरे को ऐसा लग रहा था. बट जब मैंने क्वेश्चन आंसर्स की बुक खोली, मेरे को उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था. मेरे को लग रहा था कि अगर मैं इतना पढ़ने के बाद भी अगर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं पूरा सही कर भी पाऊंगी या नहीं. बट वो कॉन्फिडेंस मुझे डीटी में था कि मैं कर ओके लूंगी. ओके. तो दैट्स वाई फिर मेरे को फिर से डीटी के भरोसे जाना पड़ा. मतलब हाँ, तो मजबूरी में अगेन गई यू थी. आर नाउ एंटरिंग इनटू योर कंफर्ट जोन,
राइट कि yes, यार नहीं यार भाई मैं मेरा कंफर्ट जोन नहीं छोड़ूंगी अभी, but क्योंकि हाँ, ऑलरेडी तू तेरे डिस्कम्फर्ट में से जब जा रही थी, तो वट एवर हुएवर द फैकल्टी इज, पीपल वुड लव टू नो इन द कमेंट सेक्शन कि हु इज इट, राइट? बट द थिंग इज दैट यू अगेन, जो भी फ्रिक्शन आया आपको, दैट अगेन लिटरली ड्रू यू टू द कंफर्ट जोन, और वापस आपने डीटी की प्रिपरेशन शुरू कर दी. दिस इज व्हाट ऑफन हैपेंस विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एक्चुअली, राइट? एंड देन फाइनली you thought कि यार काश whatever हम्म, you could have got more time to watch those lectures, हम्म, and then I think finally you enrolled for the course. yes, क्योंकि मेरे को पता लग गया था कि सितंबर अटेम्प्ट के लिए मेरे को आपसे ही क्लासेस लेनी है, मुझे Okay, किसी से समझ नहीं आ रहा था जीएसटी. lovely. And then you scored 75. Yes, Also, I have to mention this. I was genuinely like the first student that actually came to my mind. I won't lie about it, was you. And the only simple reason was you have showed up in all the Viva sessions. yes, You have, and before I could even complete the question, you have said the answer. You have yes, literally said the answer कि यार sir अभी बंद करो, like I want to say the answer, and you've interrupted me so many times, and I was genuinely rooting कि यार ये बच्ची अगर GST इतना कर रही, तो generally how you do anything is how you do everything, yes, and that would have been replicated in other subjects also. And clearly I think you secured 191, right? Which yes, was crazy. I so wished कि यार तूने यार ग्रुप 2 साथ में दे दिया होता यार, कौन लाता है 40 मार्क एक्स्ट्रा? Like you could have easily got 40, 40, 40, and you could have cleared it. But nonetheless, I'm sure all the best to you, and you are definitely clearing it this attempt. But thanks a lot for sharing that, Manushri, that how sometimes we keep maneuvering towards our comfort zone and keep forgetting that what needs to be done irrespective of how we feel about it, right? And that's something really important. Thanks a lot, Manushri, for sharing this. Quickly, I would like to take Neil into picture. Neil, you have to tell me why the hell on earth did you, right, defer the attempt, and was it a good decision? What is a bad decision uh, in retrospect, right? Just comment on that, irrespective of whether you have passed or whether you've not passed, right? Clearly you have cleared the exam, but in hindsight, if you wanted to tweak a certain decision, would you have done that? I want to know that, because I also know that you, when the results were out for the May 24 attempt, you clearly regretted the fact that you didn't. So take us through that, right? And then I will come to Nilesh, right? Go Yeah. ahead. Yeah, so firstly, I think I took your lectures around Jan month and January 4 to be exact. And Jan 15, we started with the fast track, and it was all going very smooth and very proper. Matlab, I was watching the lectures and things were going on and on. But during the study period, I guess around Feb, March, around, I realized that I'm just completely burnt out, mujhse ho nahi raha hai, and that Hmm. Hmm. I'm able to study, but I'm not able to retain it. Or, I was always with this expectation that as many aspirants were in this for me attempt that June aega, we'll give in June. And I was always planning with the expectation of अरे हाँ हाँ, this yeah, was I'm like so sorry for this. in my Yeah, 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 mind yeah. कि क्या नहीं मई जून का में जून आएगा। वाले की वजह से काफी लोगों ने मई का सितंबर ही कर दिया सीधा. हाँ, and like Yeah, this, I always planned with June only, that June hoega, and I'll be able damn, damn. to pull it off and something like that. But then all this speculations and this went Yeah. wrong and May aa gaya. And I was even happy, अच्छा 3 दिन का छुट्टी मिला है taxation को. But when the notification came out on March 19, if I'm not wrong, that the exams are not going to be extended, I was sure कि यार either A group होएगा या फिर नहीं होएगा. I was sure that no, दो नहीं हो पाएगा. The kind of prep I had done, and I don't blame anyone, but okay, I'm responsible for it. But I was adamant that I want to give both together, and there were two reasons. I feel like giving two groups is not a lot of pressure to me, and I enjoy studying. And on the height side, I was also aiming for a rank. At the back of the mind, I was like, okay, I can get a rank, and I'll work for it. I'm not scared of putting in extras and working for more time. So I was planning to defer, karu, nahi karu, and the whole 10, 15 days of March went like that. And then I even called you up that should I defer or not defer. But then you guided me ki don't defer and do this, and you can do it easily. I'm like, okay. I tried it, nahi hua, नहीं हुआ. and Okay. I guess around April 9. April 9 was, I think, when you started the revision series. And then
a call came up, and then I told you, sir, I've decided I'm deferring my attempt. And that day I very vividly remember. So you were like I swearing had on lashed out on you. I had lashed out. you were swearing कि नहीं नहीं करना है. Why are you doing this and all? And I realized that was out of pure concern कि यार you should Yeah. give this attempt. This is a golden opportunity or something. But irrespective of that, I thought that I should be thoda I should stick to my decision and I'll Fair, prepare. fair. That's also a trait that you should take up for yourself. कि आप Yeah. किसी के भी क्या है बातों पे you are not gullible enough and you don't keep changing your decisions. If you take a stand, you Mhm. stick to it. Then irrespective of whatever anyone says, anything. Go ahead. Yeah, so I decided to stay by my decision, and when I saw the May 24 paper, I was like, share like इतना easy क्यों दिया ये लोग ने. मतलब I felt I did regret कि यार इतना ज़्यादा easy क्यों दिया, and that too GST was too easy. I could just glance through the paper and crack questions, and I was like, ठीक है, let's hope the checking is difficult or something is wrong so that Yeah, September you root for that. कि यार, so that I think September. Manushri can clearly relate to this. Right? कि साला यार, एकदम tight checking हो और इस बार like somehow I just justify to myself कि I have done the right thing of skipping Yeah. an attempt, right? I swear, but then I saw results came out, and then I saw taxation ka marks. Everyone is getting an exemption. Every person Yeah, is crazy, scoring well crazy. and all. And I was like, I could have given this attempt, but irrespective, let's not get distracted, and let's focus on what we have started for. And then I just kept preparing for September. I texted you. If I needed any help, I took that, and then the whole time I just referred the two books which you always give, the chart book and the Q&A book, which were like the Bible for me for GST, and I was just pretty fluent with it. And you even said like the 40-page GST book, it was like verbatim in my mind, and so that helped me a lot. And yeah, if you and coming to the other part of question, that should have I changed my decision to take May 24 or September 24? I'll say I won't like to change anything in this. Even if I Okay. get September 24, it was for a good thing because I passed both groups to a set off, and the idea of giving one group, two group, I even proved Okay, that you actually, अच्छा set off से pass हुआ है तू? yeah, I got What are 300 your totals? 161 and 148, 309. Damn, I think the only person regretting here is Manushri. Oh, And damn, 161 and 148. 48, yeah, 309 total. Okay, okay. So like वो set off से निकल गया, and then my parents are also saying कि एक group दे. I was like नहीं, I'll give two groups and I'll prove you that it's going to be That right. was quite close. Very risky. It was very risky, but it was fun again. So I I think the AR one, I think what's a good name? Parmi Parekh, yeah, Parmi, huh? Parmi, I got to know. So the previous institution where I was working, Ednovate, yeah, she Ednovate. happened to be in the Ghatkover branch, Mhm. and I think a couple of attempts later only she was in the batch. So Mhm. one of the professors out there told me this, that she was actually supposed to give May attempt. She also skipped, yeah. Yeah, but she also skipped saying कि यार मुझे नहीं हुआ. AR लाना है तो हाँ. सर मैं सितंबर दूं, and one of the professors suggested, yeah, then go for it, right? So Mhm. generally I don't give this advice, never, because I feel it's an escape that a Yeah. student is generally trying to give to themselves, right? Mhm. Because if you are not prepared now, there is no guarantee that you are even prepared later. There are very few exceptions, like Parmi or like Neil, that I've come across, because generally it's an escape यार, because आपको पहले से पता था ना मे अटेम्प्ट है, Yeah. ऐसा Yeah. तो है नहीं. आप फाउंडेशन पास किए तो आपको पता था क्या है सीन. Mhm. तो Mhm. फिर अगर आप इतने टाइम तक मेहनत नहीं कर पाए तो फिर क्या गारंटी कि अब वापस हो जाएगा. It's Mhm. great that you literally fall in line, and you went through it, Yeah. right? Because it's extremely difficult, because उस अटेम्प्ट में भी तेरे बहुत सारे दोस्त पास हुए होंगे. Yeah, many Take people. us through that. There were like people I texted before the results. They were like, I was like, all the best and maza aayega kal. And he's like, nahi, I have started studying for September. I know I'm going to fail. And that person cleared both groups. So, मतलब इतना I यार was वो तो सबसे ज्यादा. हाँ. मतलब इतना it was a very bumper result in और me. उसमें भी क्या है, अगर हम लोग को देख यार, हमको पता है हमारा दोस्त का कैलिबर कितना है. है ना? Yeah, आईसीआई को पता हो या ना हो, राइट? आई एम है श्योर ना? दिस इज लाइक अ Exactly. वेरी रिलेटेबल थिंग. तो एंड हम्म. व्हेन वी रियलाइज, अरे ये पास हो गया साला, ये
ये आवाज कैसे हो गया भाई, इसे तो अटेम्प्ट देना ही चाहिए था, दैट इज लाइक रियली। And yeah, sir, and it's pretty ironic that the friend himself is saying that नहीं नहीं मैं फेल होऊंगा, and he passed, and he's like नहीं मालूम कैसे पास हुआ. So, क्रेजी very क्रेजी, नाउ funny. ही कैन नॉट इवन फ्लेक्स के यार ये तो बस ऐसे ही, मैं तो मॉडेस्ट Uh, but मॉडेस्ट था ऐसा। yeah, but the fact that in September I cleared in the right now both groups. And that has to give in, that, that's where I said, I don't know if you all heard this story. Especially मैंने एक वीडियो डाला था, मैं जनरली एक वीडियो डालता हूँ पहले पेपर के बाद, when generally the accounts paper is extremely bad. तो Yeah, मैंने ये स्टोरी शेयर किया था, and tomorrow Neil, even you can do that. That I literally failed in the attempt where uh, 27% result had been declared in final CA. That was the highest ever. And I literally passed in 4.5% result, which was the lowest by far in the last 10 years. Right. So things like that happen. So just believe in yourself, because जो भी percentage आएगा उसमें आप उसके अंदर होने चाहिए. That is what matters. फिर वो कुछ भी result आए. And it's great. You have something to be really proud about. कि यार जो मैं ये परसेंट पे नहीं कर पाया, मैंने इस पे कर दिया. yeah, And that is something to be remembered, and that just gives you a great sense of positivity, because it's a precedent now कि ये कर दिया आपने पहले. तो अब वापस ऐसा कोई मुश्किल ही आया तो यू विल बी लाइक हैंड्स ऑन के बॉस, मैं हो जाऊंगा, because yes, you've seen the worst. So it's great. All of them who have clearly passed, it's a great thing to just look back to कि यार अब ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है. So kudos to that. And Nilesh, finally I'd like to bring you on the table. बता भाई क्या सीन है. सर मैं पहले तो जीएसटी उठाता ही नहीं था बिल्कुल भी। उठाता ही नहीं था जरा भी. नहीं नहीं, तो सर मैंने क्लासेस में किया था, तो मेरे को हाँ. जैसे जो मॉड्यूल में पूछते हैं वो आ जाता था, लेकिन न्यू आता है तो मेरे को आइडिया ही नहीं आता था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं ज्यादातर ओके. तो टेक्स्ट के भरोसे ही जाता था, हमेशा डायरेक्ट टेक्स्ट के भरोसे ही। अच्छा. फिर मैंने आपका लेक्चर देखा था November 23 में, ओके. जब मेरे दोस्त ने मेरे को रेफर किया था, तब एक हफ्ता बाकी था खाली एग्जाम में। अच्छा, दोस्त हरामी था एकदम तेरा. नहीं नहीं, उसने मेरे को पहले ही बोला था, लेकिन मैं पहले किसी और के लेक्चर देख रहा था, तो फिर मैं एकदम से अच्छा. कन्वर्ट करने में मेरे को ऐसा लगता है कि टाइम चला ऑलवेज जाएगा ही। ऑलवेज नेवर डू दैट, नेवर डू दैट. हाँ, तो इसलिए फिर मैं जब जब मैंने आपका एक्सेस लेक्चर का एक्सेस किया ना, यूट्यूब पे हम्म. फ्री थे आपके, तो मेरे को एकदम सब कुछ समझ में आ रहा था। तो मेरे मन में ये तो था कि अगर मैं अटेम्प्ट पाएगा तो मैं आपका ही लेक्चर लूंगा, और मैंने ओके. लिए भी। फिर मैं फिर हाँ, फिर मेरे को मेरे दोस्त लोग बोलते थे कि जीएसटी हमेशा करने का, क्योंकि वो हमेशा सिक्योर करता है, लेकिन मैं कभी नहीं करता था जल्दी। मतलब मैं हमेशा सेकंड प्रेफरेंस से ही रहता था। माने तो मैं इतना टेक्स्ट कॉन्फिडेंस है लोगों को कहीं ना कहीं से यार कि डीटी के भरोसे भी निकाल लेंगे भाई अपन, पर अपन अपने फियर्स को ओवरकम नहीं करेंगे. लाइक आई थिंक दैट हाँ, इज समथिंग दैट इज सीन अक्रॉस. हाँ. फिर पेपर में भी पेपर हमेशा खेलता था, और जब हम पेपर एंड में देखते हैं वापस, तो जीएसटी बहुत इजी आता था उसमें। और इस अटेम्प्ट में भी जीएसटी इजी आया था। और हम्म. जो टैक्स था, क्योंकि वो डायरेक्ट टैक्स। पूरा पेपर कभी भी है ना डिफिकल्ट बना ही नहीं सकते. हाँ, देयर हैज टू बी समथिंग दैट इज गोइंग टू बी इजी. हाँ. और जो ऐसे मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि हमेशा अटेम्प्ट पूरा ही करने का, चाहे लग भी रहा हो कि आ रहा है और नहीं भी आ रहा तो छोड़ने का नहीं। तो अटेम्प्ट मैं पूरा. सोचता था ऐसा क्यों कि जो आ रहा है पहले स्कोर कर लेते हैं। लेकिन जब मैंने किया, फिर जैसे मेरे को लगा कि इस बार नहीं होगा, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इसी में मैं सबसे ज्यादा आए थे, जबकि डायरेक्ट टैक्सेशन में ही ज्यादा आए थे मैं। और हम्म. पूरा मैंने जीएसटी के वजह से इस बार किया था। अच्छा. हाँ, ओके. क्योंकि इसमें वो रिकॉर्ड्स वाला लेसन पूछा गया था पूरा, जो न्यू आया था अभी। हाँ 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 हाँ. हाँ, उसका बहुत सारा पूछा गया था इस बार। हाँ इस बार वो काफी हाँ अनप्रेसिडेंटेड था कि वो भी हाँ क्या है पूछा गया था, पर उसका भी हम लोगों ने छोटा छोटा फटाफट से पॉइंटर्स बना के लिखे थे. और मैंने एक बार समझाते वक्त भी क्या एक कहानी भी बताई थी उसकी कि कैसे याद रखना है. बट या आई थिंक दैट ऑल्सो वाज अ ट्रिकी पार्ट कि भाई माने उसका और क्लियरली रीजन ये है कि भाई एबीसी एनालिसिस जो है फालतू काम का कुछ है ही नहीं. राइट. साला कुछ भी सी कभी ए बन जाता है, ए कभी सी बन जाता है, पता ही नहीं चलता है यार. बिकॉज वैल्यू ऑफ सप्लाई है, एग्जेम्पशन है, उसका कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आया था इस बार. रजिस्ट्रेशन है, आईटीसीए का अलग से क्वेश्चन नहीं आया था. इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ बिगर क्वेश्चन. दैट्स इट. यू सेइंग समथिंग नीलेश. सर, ये जैसे हम ये रजिस्ट्रेशन करते हैं और पेमेंट ऑफ टैक्स करते हैं, वो पहले समझ में नहीं आता, लेकिन अगर उसको 2-3 बार देखते हैं तो अपने आप समझ में आने लगता है। मैंने ये मतलब मेरे को पता चला फिर कि जैसे नहीं आ रहा है तो बार बार देखो तो आ ही जाता है वो।
दैट्स अ वेरी गुड टेक अवे कि कोई भी चीज अगर आपको नहीं आती फॉर एनी सब्जेक्ट, just try to be with that subject, because a subject and a girlfriend are very similar, guys. The more you spend time with them, the more you understand them. I'm telling it clearly out of experience now that I'm married also, right? Otherwise women and subject are very similar, guys. If you don't try to understand them, they will go away from you, right? So big life advice from my side too. Taking notes. Okay. तो थैंक्स अ लॉट नीलेश यार, ये भी बहुत अमेजिंग सा क्या है तेरा एक्सपीरियंस मुझे लगा, विच आई थिंक कैन मेक अ बिग डिफरेंस। कि यार हम लोग अगर वही क्या है वही चीज करते रहे और पैटर्न नहीं रोका हम लोगों ने, तो भाई फेल ही होने वाले इस बार। एंड आई हैव लिटरली सीन दिस टाइम that a lot of students have literally been, I'm sure your friends also are from the total of 141 से लेके 145, ये टोटल के बीच में कितने जन है यार? अनगिनत लोग हैं, और सबको टैक्सेशन में क्या एग्जेम्पशन नहीं आया है, यही कारण था उसका। बिकॉज अकाउंट्स और लॉ में तो बहुत ही कम मार्क्स दिए उन्होंने, टैक्सेशन में दे हैव गिवन एग्जेम्पशंस टू स्पेसिफिक पीपल, और जिनको आया ना उनको रख के आया मार्क्स 75 65, लाइक रियली गुड। माने जिनको अच्छे से जिन्होंने लिखा है उनको रख किया, विच इज आई थिंक अ ग्रेट थिंग। एंड आई एम सो हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू ऑल collectively did finally the wise thing, and that is why the result that is there is what is in front of you. Now quickly, there are 3 things that you would like to advise everyone while preparing for their taxation paper, including I would like to also ask you all, especially डीटी की कौन सी फैकल्टीज आपने रेफर किया, बिकॉज आईडीटी में तो आपको मेरा ही नाम देना पड़ेगा, बिकॉज पॉडकास्ट मेरा है बेटा, राइट? वरना पोपट हो जाएगा मेरा, राइट? ऑल्सो द मटीरियल्स दैट यू हैव यूज्ड इन डीटी एंड आईडीटी, राइट? सो दैट क्लियरली एक बड़ा सा क्या है पर्सपेक्टिव मिल जाए बच्चों को, एंड उनको भी क्या है आइडिया आ जाए कि यार एग्जामिशन लाना है, दिस इज द वे, वीव गॉट 4-5 प्रेसिडेंट्स आउट हियर, एंड उनसे ही क्या है they can take up anything, and this should include lectures, material, mock test if you have given any, right? The importance of viva sessions that we had taken if you all have attended any, and yeah, that's it. And how the lectures have mostly helped you, so that people can make a decision, because the lectures that I had put on YouTube, right, for the first attempt, okay, I have literally given them, at a, complete giveaway price of 2,000 in the form of GST Express batch, where in just 30 hours, we are trying to figure out how to make someone from zero to a complete pro in GST, because we have solved the entire OCOQ book, and the entire chart book is explained in terms of concepts, right? So give us a takeaway of that. And we start with Manushri. Go ahead. सो फर्स्ट थिंग तो पहले ये लेक्चर से स्टार्ट करने की हाँ, किससे? लेक्चर से बात कर ले। डीटी में किसका देखा था तूने? मैंने प्रैक्टिस बैच लिया था अमित महाजन सर का। फेयर, लवली, अमेजिंग और फैकल्टी, या यस, उनका टीडीएस और टीसीएस बेस्ट था, मतलब ओके। उनसे पढ़ के वो उनका कुछ बिल्कुल। मेमोरी टेक्निक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस या यस, वो दैट्स रिपीट ग्रेट। करवाते हैं बहुत बार। अच्छा, तो याद हो जाता है आपको। हाँ जी। और डीटी का मैंने उनसे प्रैक्टिस बैच लिया था, और उनकी बुक्स आई थी कंपाइलर और वो नोट्स। और आईडीटी आपसे लिया था, और आपकी ओसीओक्यू बुक, समरी बुक एंड क्यूएनए, ये तीनों मैंने रेफर की थी। और वाइवा सेशंस मैंने रेगुलरली अटेंड किए थे, मतलब एक भी नहीं एंड छोड़ा हाउ मैंने। डिड यू थिंक दैट वाइवा सेशंस रियली हेल्प्ड यू? सर एक तो हर सैटरडे होता था, मतलब एक आवर में आपके 2 या 3 चैप्टर्स रिवाइज हो जाते थे, मतलब, और आप भी क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे पूछते थे जो जिसमें ट्रिकी पॉइंट्स होते थे। तो 1 घंटे में 3 चैप्टर्स रिवाइज हो जाते थे, और हर सैटरडे हो रहा है, मतलब रेपिटेशन भी हो रही है। हर सैटरडे हमारे हाँ, 3 चैप्टर कोई रिवाइज हो गुठली रहे हैं। नहीं मारी है भाई, हाँ, और आंधी आ जाए सब्जेक्ट तूफान आ जाए। हाँ, सब्जेक्ट छूटा नहीं, मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने रख दिया अब मैं यू आर इन लास्ट ईयर। टच विद इट, करेक्ट। यस, तो वो रहा। और वाइवा सेशंस में ना ये पता लगता था कि कई बार ऐसा भी होता था कि कोई और आंसर दे रहा है और मेरा आंसर अलग है, तो अपनी गलती हाँ, भी पता लगती थी कि अब हमारी गलती क्या है। और ऊपर से
मतलब हमें 2 मिनट में आंसर देना होता था, क्वेश्चन आ गया और हमें आंसर देना फटाफट। तो करेक्ट, उससे हमारी स्पीड भी इंक्रीज होती थी क्वेश्चन रीड करने की और आंसर समझने देने की, की। हाँ, करेक्ट करेक्ट, हाँ जी। लवली। वाइवा सेशंस वाइवा सेशंस में आपको ये भी पता लगता है कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे ना, और आप वाइवा सेशंस में, मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, बट मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि मैंने सारा किया हुआ है, क्योंकि आपने वाइवा सेशंस में फाइनल के क्वेश्चंस पे डिस्कस किए थे जो फाइनल के पेपर हाँ, में आए थे। तो कॉन्फिडेंस मेरे को जीएसटी में बहुत था कि मैं नहीं भी दूंगी मेरा हो जाएगा। ओके, lovely. And is there any mock test that you gave for a DT or IDT written में? सर मैंने ना डिटेल टेस्ट सीरीज ली थी। उसमें 2 या 3 चैप्टर्स डीटी के होते हैं और 2 या 3 चैप्टर आईडीटी के होते हैं। Okay, ऐसे एक टेस्ट होता है। मैंने उसके 3 टेस्ट दिए थे, मैं सारे नहीं दे पाई थी, मैंने 3 टेस्ट दिए थे। बट ना वो जो उसमें क्वेश्चंस आ रहे थे वो आपकी ऑलरेडी बुक में थे, तो फिर मेरे को कुछ नया मिला ही नहीं। तो तूने न्यू क्वेश्चन अच्छा, तो तू उसी क्वेश्चंस रेफर करने के लिए टेस्ट मैंने सीरीज दिया देखना था था तूने? कि न्यू क्वेश्चंस ओके, आते हैं नहीं तूने आते, फिर लिखा नहीं ये था पर फेयर, लिखे थे। लिखे फर्स्ट थे? 3 लिखे थे, यस, उसके बाद नहीं लिखे। ओके, और तेरा टाइमिंग तू ट्रैक कर रही थी तभी? यस, कि मेरा तो उसी तीन टाइम में घंटे में हो। हो जाता था एमसीक्यूज ये वो सब? 1.5 आवर का होता था सर टेस्ट, 45 मिनट्स या 1.5 आवर ओके, ऐसे ही हो होता था। जाता था आराम से, विद इन द टाइम लिमिट ही हो जाता था। यस ओके। यस। और एक छोटा सा क्वेश्चन, एवरीवन आल्सो रिमेम्बर, ये भी बोलना है आपको, आपने किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपना टैक्सेशन का पेपर अटेम्प्ट किया था? मैंने रीडिंग टाइम में ही जीएसटी सारा 15 मिनट, सॉल्व हाँ, कर लिया 15 मिनट से बोलना, यस। था। 15 मिनट में मैंने पूरा जीएसटी अपने दिमाग में सॉल्व कर लिया था कि इसका आंसर क्या होगा। मतलब मैंने डीटी का क्वेश्चन पेपर पढ़ा भी नहीं था। और मैं मतलब ये सोचती हूँ कि अच्छा हुआ मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि अगर मैं पढ़ लेती मैं पैनिक मोड में आ जाती और मेरा पूरा पेपर खराब हो जाता जीएसटी का भी। तो मैंने 15 मिनट्स में पूरा जीएसटी सॉल्व कर लिया था। और फिर जब राइटिंग टाइम शुरू हुआ, मेरा 45 मिनट्स में जीएसटी पूरा लिख के हो गया था। ओ डैम। उसके बाद मैंने एमसीक्यू पर एमसीक्यू सबसे स्टार्ट किया। पहले तूने क्या अटेम्प्ट किया था, एमसीक्यू या सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव, जीएसटी का क्योंकि वही डिस्क्रिप्टिव। 15 मिनट में पढ़ा था। आई हाँ थिंक आई जी, हैड गिवन यू दैट ऑर्डर के पहले आपको। वही वही हाँ, वही किया था हाँ, फॉलो जो आपने दिया था। हाँ, तो फिर उसके बाद 45 मिनट्स में हो गया। एमसीक्यू में मेरे को बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि डीटी के एमसीक्यूज मतलब सॉल्व ही नहीं हो रहे थे, आंसर ही नहीं आ रहे थे। जीएसटी के एमसीक्यूज तो बहुत इजी थे, मतलब वो तो तो वो हो गए कितने थे। देर में हो गए थे? 45 मिनट्स में सब्जेक्टिव सॉल्व कर दिया जीएसटी, फिर? 30 to 45 मिनट्स मेरे को एमसीक्यूज में भी लग गए थे। तो उसके बाद सिर्फ 1 आवर बचा था मेरे पास डीटी के लिए। उसमें मैंने क्वेश्चन पेपर भी पढ़ना था और सॉल्व भी करना था। तो जब मैंने ये डीटी पे आई वॉज शॉक्ड कि मतलब इतना डिफिकल्ट पेपर है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा भी नहीं, मैंने छोड़ दिया था लेंथ देख के। मैंने सोचा मैं इसको पढ़ने बैठूंगी मेरा पूरा पेपर छूट जाएगा। मैंने उसको गुड। छोड़ के जैसे मैंने क्वेश्चंस का बस ओवरव्यू ले लिया था कि मेरे को कौन सा आता है कौन सा नहीं आता, मैंने जस्ट स्टार्ट कर दिया लिखना। जो समझ में आ रहा है बस लिख दिया। डीटी का ऐसे किया मैंने। लवली, ये बहुत अच्छा किया यार, बिकॉज समटाइम्स like the worst regret is not knowing the question, but the worst regret is clearly not spending enough time in the questions that you know, right? So, वो क्वेश्चन इतना बड़ा था, वो पढ़ने जाती छोड़ ही होता दिया ही नहीं। सीधा। लवली। छोड़ दिया। ओके, सो इट्स आईडीटी सब्जेक्टिव, क्योंकि 15 मिनट आपको पढ़ने का क्या मौका मिला था, देन आईडीटी एमसीक्यूज, देन डीटी एमसीक्यूज, क्योंकि वो एक साथ ही है तो एक साथ ही कर लेते हैं भाई, वापस कहाँ पेपर चेंज करे, एंड देन डीटी सब्जेक्टिव, राइट? यस। Fair, lovely. Okay, next, Neil, come on, tell me. So, like the three main inputs which I would like to give through this is like first balance it out. I don't find sense in people like giving more time to DT or ITT. मेरे को Hmm. लगता है as you said कि 50-50 marks दोनों का है. Fair, makes sense. कितना टाइम दोगे, you need that 50 marks from this Hmm. section or this section, so Hmm. try to always spend equal amount of time even in studying in if you're confident, but you should spend some equal amount of time so that even if you have a strong subject then you have a stronger hold over it because you don't know paper में क्या difficult आने वाला है क्या Fair, easy आने fair. वाला है. You should always balance it out. And secondly, I'll say stick to your content and don't change your material and trust your material because at times मुझे भी सर I'll be honest मुझे बहुत ऐसा गिमिकी लगता था कि यार how is he covering everything in 40 45 pages में. मतलब मैं I want like you to say this. I really want you to say this. But how uh, did you confirm it then कि यार नहीं यार ये सही है, बंदे ने कुछ सोच समझ के बनाया है भाई? I asked like some other student of yours who cleared May 24 and I Okay. texted
on Telegram कि is this मतलब reliable and then ये येड़ा बना रहा है क्या ये क्या बोलते हैं उसको, क्लिक बेट है क्या ये? हाँ then like yeah, then she told me that okay, it also feels gimmicky to her, but yes, this man has done something what 45 pages में सब covered आता है. Like they would know the whole 50 marks from that paper to that 45 pages. Like मतलब then I was like, ठीक है, I can trust this material. So if you trust your material and if you just stick to it, then you can just crack it very like fluently. okay. I'm And I'm I'm extremely interested to know who was that student. I can name it even like Yeah, that person. The Tamanna, if I'm not wrong, like she cleared Tamanna. it. Okay, yeah. Tamanna Exam. is yeah. So Tamanna is religiously followed it, and yeah. yeah, and my third advice will be like again, it's like you should refer the Q&A book also. I'll suggest because you know like this for the chart book really helps in concept building and all, but the language which is to be written and the inputs which are to be followed, which you say while solving the questions, like these are the questions which are important, these are to be referred and all. Okay, sorry, I would even like to add one point. The statutory updates, वो जो statutory updates, जो amendments जो yellow में highlighted होते हैं, that is very very important. मतलब last day पे also, even before going to the exam center also, I revised that बहुत अच्छे से because उसमें से बहुत ज्यादा आता है. So मतलब IDT में और DT में whatever you're taking, you should make sure that you revise the statutory updates very well and you should be thorough with it. And coming back to the lectures I had taken for DT, I was in Ednovate, so I had taken lecture. I had this faculty, Amit Rajpurohit sir, and we had a notes ka book, and he used to give additional notes also, and we had a compiler book. So he was an extremely lovely professor and Yeah, he's a one good of my person. favorite professors over there. Lovely. And And, mock test का क्या सीन है? I didn't attempt proper mock test, पर मैंने like I glanced through like September का and May का तो दोनों का mock test and pen paper पे solve किया था, but not proper because time constraint हो गया था मुझे थोड़ा, so I thought that I should at least be thorough with it. मतलब तू बेटा yeah, बहुत गाली खाता, अगर थोड़े मार्क्स तेरे ऊपर नीचे हो जाते ना, माँ कसम. I know. बट है माने, ये एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ. क्लियरली आई वुड लाइक स्टूडेंट्स टू राइट द पेपर एटलीस्ट वंस, बिकॉज कई बार क्या है, अपना एक्चुअल पेपर ही मॉक टेस्ट हो जाता है, राइट? अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. बट नील इज क्लियरली वन ऑफ द प्रेसिडेंट्स, राइट? जो नहीं अगर दे रहा है तो भी क्या है, चलेगा. एंड आई थिंक वी विल इवन हैव मोर. बट या, फेयर टू दैट कि भाई ऊपर ऊपर से सॉल्व कर लिया तो भी चलेगा, अगर टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है. जस्ट डोंट फील इनकम्प्लीट एंड गो विद दैट एटीट्यूड कि यार जस्ट बिकॉज आई एम नॉट रिटन मॉक टेस्ट आई डोंट डिजर्व टू पास. डोंट सेट दैट इन योर माइंड. फेयर, मेक सेंस. एंड बाय एनी चांस डिड यू हैव द chance to look at the OCOQ book No, I was only referring the chart book and the and the Q&A. Q&A book? Fair. Yeah. Lovely. Oh, Done. Sarsh, next, you go. तो सर फैकल्टी के लिए तो मेरा And काफी एक सेकंड ज्यादा sorry Sarsh, हाँ हाँ नील वो chronological order बता दे फटाफट से. So, paper written 15 minutes. So I only read mainly GST and I take the questions and I DT थोड़ा ऊपर से पढ़ा, but I was very sure GST first attend करना because I see it seemed pretty easier, less lengthy, and I know I can crack. I'm confident in the answers. So GST वगैरह attend किया and I was able to complete in 1.5 hours the whole GST, or 1 hour 40 minutes I was able to complete GST. So that gave me a confidence कि चलो fail तो नहीं होने वाले इधर. And because GST was comparatively easy, if you see DT paper, DT was traumatizing for me because ऐसा लग रहा था residential status भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, and at a point I was completely blown away DT के paper से. But GST helped me to stay calm and tell myself कि कि okay, भाई विकेट पे अभी भी टिके हम लोग. yeah, else if I had attended DT पहले ना sir, that would have been my last paper. I would have not attempted only September because DT was very lengthy, difficult also, and that's where GST helps. That's why when you balance it out, you focus on GST also, then GST comes out as कोई ना a कोई सब्जेक्ट हेल्प कर लेगा आपको. Fair. yeah, exactly. And in that So 20-30 minutes you must have done DT MCQs. yeah. I did DT MCQs also in the 20-30 minutes, but hi, MCQs attended, and then I went to the descriptive section. Okay, lovely. Done. Sarsh, next, come on. Any three things that you think can really help someone ace their marks in taxation paper per se, and also the lectures that you've referred? सर मैंने जो
डिफरेंट किया एज कम्पेयर टू लास्ट अटेम्प्ट्स, वो था कि पहला, अगर अपने दिमाग से ये हटा दो कि टैक्स का पेपर एक बहुत बड़ा एक हवा टाइप हाँ। का है, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ उसको अटेम्प्ट करो कि हाँ यार टैक्स का पेपर है, बाकी पेपर्स की तरह ही है। ये मैंने इस बार डिफरेंट किया, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ पढ़ा। दूसरा, अपना एज नील सेड कि अपने मटेरियल पे भरोसा ट्रस्ट रखो। रखो, फैकल्टी यस, पे ट्रस्ट रखो। यस। So for like DT faculty, I referred Amit Mahajan sir's practice batch, and for Okay, revision, lovely. for DT revisions, I referred to Bhavar Burana sir's revision videos, Okay. and material भी उनका ही था। And for एक सेकंड, IDT, डीटी में तूने 2 जन को रेफर किया था? हाँ सर, प्रैक्टिस बैच फॉर प्रैक्टिस, एंड लास्ट डे के जो रिविजन होते हैं उनके लिए भंवर बुराना सर की रिवीजन वीडियोस होती है। Okay, why is that? Because I think Amit sir also does a lot of revisions. हाँ वो करते हैं, बट सर वो समझ में ज्यादा ऐसे एकदम वो क्विक रिवीजन होता है ना, वो मेरे को भंवर ठीक है, बुराना वो सर का। फेयर हाँ। फेयर 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 मेक सेंस। तो और आईडीटी के लिए सर मेरे को इस बार ये था कि क्लासेस तो ले रखी है, एंड मुझे एक बार सेल्फ स्टडी इसमें ज़्यादा करनी है। तो मैंने सेल्फ स्टडी के लिए मैं ऐसे ढूंढ रहा था क्या है क्या है क्या है, तो यूट्यूब अपने आप ही आपकी वीडियो सजेस्ट करने लग गया। ठीक है, मैंने यार फिर से वीडियोस पूरे ऐसे नहीं देखने वाला मैं एक एक घंटे की। बट फिर यूट्यूब ने मुझे सजेस्ट किया ऐसे वाइवा सेशन वाला वीडियो, तो मैंने ये डिफरेंट है, इसको क्लिक करके देखते हैं। एंड फिर आपने उसमें बताया कि वाइवा सेशन जैसे होते हैं, समवन कीप्स चेक ऑन यू लाइक स्कूल डेज। तो मैंने इनरोल कर लिया, एंड वो काफ़ी अच्छा डिसीजन था मेरा कि मैंने उस पर क्लिक किया। क्योंकि सर वाइवा सेशंस में मुझे पता चला कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो 5% भी नहीं पढ़ रहा, जो मुझे लग रहा था कि हाँ मैंने पूरा जीएसटी पढ़ा है, नहीं, ओ बिल्कुल नहीं डैम। था वो। बिल्कुल नहीं पढ़ा था मैंने जीएसटी। फिर पहले वाइवा सेशन में मेरी बोलती ही नहीं निकली थी कि भाई अगर गलत आंसर दिया यहाँ तो खत्म हूँ मैं, इज्जत गई पानी में पूरी। फिर आपने ऐसे अगले हम्म। सैटरडे के लिए वो दिया, 3-4 चैप्टर दिए थे, वो पढ़ के आया। तो सेकंड वाइवा सेशन से मुझे पता लगा कि हाँ ठीक है अब हो रही है थोड़ी पढ़ाई। लास्ट डे तक आते आते मेरा ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था, और मैं पेपर पूरा जीएसटी के भरोसे ही गया था कि भाई डीटी में देखूंगा ही नहीं, डीटी आफ्टर जीएसटी देखेंगे। और लास्ट के 15 मिनट, पहले 15 मिनट में मैंने पहले जीएसटी देखा, और पेंसिल से हल्का हल्का मार्क कर लिया कि कौन सा आउटवर्ड ये है, भी बोला इनवर्ड था है। मैंने कि कुछ कर देना चलेगा, ऐसा हाँ, कुछ को हाँ, देखता नहीं है। हाँ। बहुत हल्का सा मार्क है कि इनवर्ड आउटवर्ड करेक्ट। और कहाँ पे। तो ये हेल्पफुल था। और पीछे मैंने स्टार्ट किया पेपर लास्ट क्वेश्चन से, तो वो तो लिखते गुड। लिखते 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 हो गया। एंड देन मैं आया डीटी पे। डीटी देखते ही ऐसा मन किया कि रो दूं मैं पेपर में यहीं पे और मैं उठ के चला जाऊं, क्योंकि हर क्वेश्चन में उन्होंने डाल रखा कि इसको दोनों स्कीम से करो, 115 बीएससी और ओल्ड स्कीम। क्या करूं मैं। अरे बाप रे भाई, और आपने एक ऑल ही स्कीम पढ़ा हुआ था जनरली वैसा? सर प्रैक्टिस, सर टाइम नहीं था ना उतना करने का कि हाँ आप अच्छा उससे भी अच्छा, ओके, करो उससे टाइम ही भी नहीं करो। था। ओके, हाँ। हाँ, और उसको पढ़ के पहले एनालाइज करो। बट मेरी प्रैक्टिस ना फर्स्ट क्वेश्चन की बहुत अच्छी थी, तो मैंने उसके कम से कम ऐसे 1000 कह रहा हूँ 100 क्वेश्चन तो सॉल्व किए थे रिटर्न, फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है। तो वो मैंने सिर्फ किया, एंड बाकी क्वेश्चन मैंने हल्के हल्के किए और छोड़ दिया। बट ओके। हाँ, तो इस बार जो मैंने चेंज किया वो था कि वाइवा सेशंस मैंने अटेम्प्ट किए, और सेल्फ स्टडी मैंने ज़्यादा करी। सेल्फ ओके। स्टडी के लिए मैंने आपका मटेरियल यूज़ किया था, ओ सी ओ क्यू बुक, एंड आपका क्यू एन ए बुक, और चार्ट बुक। ओके। काफ़ी हेल्पफुल था वो। मुझे मुझे बस ये पूछना था, आई विल कम बैक टू दैट क्वेश्चन लेटर, बट फर्स्ट क्विकली टेल मी दिस के डीटी में तूने जो वो 1 मार्क के 10 मार्क के क्वेश्चंस किए थे, वो हाँ, कहाँ से किए थे? लाइक पीवाई क्यू से ही किए थे या फिर क्या है? वो जो पूरा क्वेश्चन होता है सबसे फर्स्ट हाँ, क्वेश्चन, वो मैंने अमित महाजन सर के उससे क्वेश्चन बुक क्वेश्चन बैंक मटेरियल से। से लिया था। हाँ, ओके, तो इनफ प्रैक्टिस हुई थी बेसिकली डीटी की भी। हाँ, हाँ, हाँ। लवली। ओके, तो क्योंकि दैट पहले जो बिकॉज दैट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट यार, वो दहशत वाला क्वेश्चन है। हाँ, और ये तो हाँ। मैं स्ट्रांगली एडवाइस करता हूँ कि टैक्सेशन के पेपर में पहला क्वेश्चन मत रीड करो, हम्म, स्पेशली डीटी सेक्शन का, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस की हम्म, धज्जियां उड़ा देगा। एंड यू डोंट वांट टू डू दैट, हम्म, which is why GST, not because I am teaching that subject, हाँ, but a lot of DT faculties who are rational हम्म, enough, they will also say कि GST से ही चालू कर भाई, हाँ। डीटी मत हाथ लगा, बिकॉज नहीं भले ही मेरे वो को कितना भी अच्छा फैकल्टी हो, बट एट द एंड ऑफ द डे दैट कैन बी अ सुसाइडल थिंग। सो या। मुझे काफी मेरे मेरे सीनियर्स ने भी बोला, और मेरे भैया ने भी बोला था कि जीएसटी के साथ जा एंड यू विल पास, आराम से पास करेगा, जीएसटी पढ़ के जा। बट वो एक क्या कहते हैं, हमारा कंफर्ट जोन आ जाता है कि भाई
डीटी पढ़ लेते, इंटरेस्टिंग लग रहा है। हम्म। जीएसटी तो पूरा याद करना है, ऐसे महासागर है, इतने सारे अमेंडमेंट्स आ जाते हैं, इतने सारा वो आ जाता है। तो मैं हर बार जीएसटी को ऐसे ही इग्नोर मार के जाता था कि हाँ चल सप्लाई पढ़ लिया, वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ लिया, टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ लिया, छोटे छोटे चैप्टर सारे करके चले गए। आता कुछ नहीं है पेपर में। बट इस बार Yeah. सारा अच्छे से किया। एंड ये मैंने एक और चीज करी कि मैंने हर क्वेश्चन को हाथ से सॉल्व किया, ऐसे ऊपर से ओवरलुक करा, लिख ऐसे के किया, किया है, लिख क्या के बात किया है। है। यस। आपकी ओसीओ की बुक मैंने कम से कम 3 बार सॉल्व करी होगी लिख के। क्या? यस। वो वो भेजा वो कर यार, फोटो वोटो, मुझे अच्छा वो लगेगा ये मेरी देख के। फेवरेट बुक है सर, फेवरेट बुक है। हाँ, अभी। पर उसमें मेहनत भी बहुत हुई है यार, माने हम्म। लिटरली एक एक हम्म। एडजस्टमेंट्स जो डाले हैं, हम्म। काफी मेहनत हुई है। फेयर, लवली, थैंक्स अ लॉट सर। रसेश, फटाफट से क्विकली यू टेक एंड देन नीलेश। Sir, the faculty for direct tax is Sagar Vora, sir, and ओके, लवली। I don't have to say anything about him because you know him personally very well. या How stunningly strict he is as far as DT is concerned. और syllabus अगर होता नहीं है तो you have to be mentally prepared to face his wrath. But that's how it was as far as DT is concerned. And sir, IDT में बाद में I had taken your lectures. My just two insights would be: number one, full coverage. Because sir, there has to be full coverage because ultimately जो छोटे छोटे chapters है, accounts and records, e-way bill, छोड़ते payment of tax, sir वहां वहां आते आते मोरल इतना डाउन हो जाता है। वी आर लाइक अरे 18 में से 13 chapters पढ़ लिए, अब इससे ज्यादा हम क्या करें? बट since these are small chapters and we have to put in efforts ultimately, because if we leave an option in an exam it becomes compulsion. हाँ So हाँ that's हाँ, what it has to be avoided, because ultimately ABC analysis sir सारा का सारा धरा का धरा रह जाता है. All the analysis, all the panditry, it goes completely in vain when the question paper comes in phase. सो ट्रू। So वो तो होता ही है sir. So I'll just share my analogy with you that when all the exit polls were predicting NDA sweep, all of us know what happened. So that's what happens with every aspirant when they undergo सो the ट्रू, द taxation सेम थिंग exam. हैपेंड मई का जून। Exactly, sir. May का जून में तो इतना hype up था and a lot of confusions and clarity was not there, sir. So वो है full coverage and sir chapters भी इतने छोटे छोटे, for example accounts and records का you have summarized it in 2 pages. So we are like कि कर ही लेते हैं ना भाई, 2 पेज अभी इतना पढ़ा है तो अभी दो नहीं let's भाई, एक पेज में किया है वो। हाँ सर वही एक पेज में, एंड ई वे बिल भी ऑलमोस्ट एक पेज में किया था एक दो आपने शायद, पेज में, हाँ एक दो पेज करेक्ट। में. सो वी आर लाइक अभी यहाँ तक आ चुके हैं, सो व्हाई आर वी लीविंग दैट फॉर ऑप्शन? सो फुल कवरेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And sir has also highlighted the importance of writing practice. So there has to be adequate writing practice for the तूने भी same, sir. किया And था? sir किया था, and after completing the whole syllabus writing practice करा था, because exemptions आपने revise करा, then you're going for writing practice and Q&A does not make any sense because पूरा मतलब पूरा जीएसटी आपको एक साथ में देना पड़ेगा सर. सो इट्स बेटर टू कंपाइल द एंटायर सिलेबस फर्स्ट, बाद में 50 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट करके यू हैव टू गो फॉर टेस्ट. And it's completely normal to score less marks for the first time. Later on your graph will improve and you'll realize कि कहाँ mistakes हो रही है sir. And there are certain chapters which are cash cows. For example, ITC, exemptions, value of supply, उस पे थोड़ा ज्यादा weightage होना चाहिए because ultimately these are numerical chapters. And accounts and records को भी ignore करने ही वाला था सर मैं, but luckily हुआ नहीं. And works contract का question आ चुका था and I was like finally TDS के साथ works contract है, so sorted है. हाँ 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 हाँ, वो Ultimately ऐसा at the end of the day. करेक्ट। And sir मेरा जो flow था content का वही था कि I made a very big mistake by attempting the first compulsory question of direct taxation. Sir उसमें अरे almost भाई, 45 minutes उसमें चले गए थे and I was not even sure कि ये सही है. Then I was like अरे कि यार ये सबसे बुरा फीलिंग है पेपर में भाई, कि sir वक्त भी बर्बाद कर चुके हैं और I had आइडिया भी नहीं है साला। sir almost given up my mind on this course. बाद में जब मैंने आईडीटी का पेपर खोला सर, बाद में ऑलमोस्ट 2 घंटे में सब कुछ हो चुका था मेरा, एंड बाद में 1 ही घंटा बाकी था. एंड इन दैट 1 घंटा लकीली जैसे मनुष्य ने सर जिक्र किया कि एमसीक्यूज बहुत डिफिकल्ट है डीटी के, बट लकीली डीटी के एमसीक्यूज वेंट प्रीटी वेल. बाद में छोटा मोटा पार्ट बाकी था सैलरी और क्लबिंग ऑफ इनकम का, वो मैंने बाद में सॉल्व कर लिया एंड दैट्स हाउ द पेपर एंडेड. बट बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया था सर बिकॉज ऑफ डीटी का फर्स्ट कंपलसरी. So it was DT subjective, DT MCQs, then तो GST. सर डीटी सब्जेक्टिव, डीटी का कंपलसरी क्वेश्चन, फिर पूरा जीएसटी, Okay. क्योंकि मैंने And कंपलसरी then क्वेश्चन DT का सॉल्व MCQs. सर Okay. वापस मैं डीटी पे आया था बिकॉज आई कंप्लीटली मेड अप माय माइंड की डीटी अगर अब कंटिन्यू तो रहा DT हमारा नहीं कर रहा है भाई। तो सर 40 भी इज अ डिस्टेंट ड्रीम फॉर अस अगर डीटी कंटिन्यू किया हमने. इसके लिए बाद में बाद में Okay. आईडीटी सर पूरा सॉल्व हो गया था. आई वाज लाइक अच्छा, कि चलो तो बस 15 मिनट में तूने DT ही किया था सिर्फ? सर पूरा डीटी का पेपर ही पढ़ा था मैंने, आईडीटी मैंने देखा ही नहीं. अरे यार, ओके ओके।
So इसके लिए because DT Contrarian, taking a contrarian bet. सर ऑन द बैक ऑफ द माइंड ये था कि DT इतने अटेम्प्ट से कर रहे, सो मतलब वी आर गिविंग इट, सो कहीं ना कहीं विल बी इन अ गुड पोजीशन। बट सर DT लिखने के बाद पता चल गया, बाद में Wow. IDT के बाद वो कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो 40 तो ब्रीच हम कर ही लेंगे किसी भी Hmm. कीमत पर। सो Hmm. दैट्स व्हाट द एंटायर सिनेरियो। Fantastic, yeah. Thanks a lot, Rasesh. It was really amazing experience. And lastly, I'll also like to share what Rasesh has written. Rasesh is a very good poet, amazing poet. And अभी शेयर कर देता हूँ, अभी लास्ट की क्या बात करो, रुक जाओ भाई। माने रसेश भाई ऐसा है कि भाई कभी ही एक नंबर का माने, वो गलत लाइन में आते हैं ना, वो लाइन कौन सी लाइन में आ गए सर आप, तो ये ऐसी लाइन थी कि क्लियरली आई वाज टेकन अबैक। तो शेरो शायरी की है हम लोगों ने काफी पहले, बट ही राइट्स एंड इट गोज लाइक, ऑल आई कैन से इज सर, आपके संघर्षों ने किया है न्याय, आपके संघर्षों ने किया है न्याय, समाप्त हुआ सिंटर सीए इंटर टैक्स का अध्याय। उसकी माँ का साकीना का, एक नंबर भाई, एक नंबर, मजा आ गया दोस्त। वो जो न्याय और अध्याय तूने खेला है भाई, ओके, मैंने बोला भाई मेरी सर जस्ट टू ऐड वन मोर लाइन, IDT के अलावा नहीं है कोई पर्याय। अरे वाह, एक नंबर भाई। तेरे को सबसे पहले बेटा जो आता है ना टीजर, पहले 30 सेकंड यही चलेगा मेरे दोस्त, पहले ही बता रहा हूं तुझे। ओके लवली। नीलेश, टेल मी व्हाट्स योर स्टोरी, फाइनली टेल मी। सर मैंने डायरेक्ट एक्शन ना विजय साढ़े सर से लिया था यूट्यूब से। हाँ, कहाँ उनका से कहाँ फ्री से? था यूट्यूब से। ओके, कौन से टीचर का लिया था, बता दे सबको। विजय साढ़े सर से लिया था, उनका फास्टैग फ्री था। मिथिलेश? और हाँ नहीं नहीं, विजय साड़ा। विजय साड़ा विजय सर, साड़ा ओके सर। ओके। अच्छा, फ्री में डाल हाँ रखा उन्होंने पूरा? हाँ, वो May 24 का उनका फ्री था पूरा। ओके डन, ठीक है फिर। और ये GST तो आपसे ही लिया था। ओके तो मुझे ये तो था कि मेरे को मतलब इस बार लेक्चर एक्सेस तो लेने नहीं, क्योंकि मैं पहले से था ही। तो मुझे ऐसा था कि मैं इस बार जो जो नहीं आएगा वो मैं यूट्यूब से देख लूंगा, और बाकी पूरा खुद से ही कहूंगा, क्योंकि यूट्यूब में जैसे देखते जाओ तो वो थोड़ा तो मतलब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा अलग अलग बातें भी बना बोलनी पड़ती है, क्योंकि आप खुद से कहेंगे तो फिर जल्दी जल्दी हो जाता है। और यूट्यूब में क्या है, ताकि इंटरेस्ट है तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बनाना पड़ता है हम्म। उस हिसाब से। तो और तो कंक्लूजन क्या है उसका, इसका ये चीज का कि यूट्यूब से पढ़ना चाहिए या कोर्स लेना चाहिए, क्या माने नहीं नहीं, कंक्लूजन? पढ़ना चाहिए सर, पढ़ना चाहिए सर, पढ़ना चाहिए। ओके ओके हाँ, ओके, फेयर। एंड तीन कोई चीज बता दे फटाफट से जो तूने इस बार सही की है भाई, मैंने एक जो तो पहले RTP नहीं किया की था, थी। हाँ MTP किया था। हाँ पहले नहीं किए थे मैंने। जो जो दो पेपर तो मैंने खुद से सॉल्व किए थे, और बाकी सब ऊपर से देखे थे। ओके कि जो 15 मिनट पेपर के होते हैं उसमें मैंने हमेशा मतलब लास्ट से मैं स्टार्ट करता था, लेकिन इस बार मेरे दोस्त ने बोला कि पहले है ना एटलीस्ट मतलब 20 मार्क्स का खुद स्कोर लेने का, उसके बाद MCQ पे जाना। नहीं तो पहले मैं हमेशा MCQ पे जाता था ऐसा। ओह, ये बहुत एक्चुअली बुरा स्ट्रैटेजी है, बिकॉज 15 मिनट आप समझो कि आपने सब्जेक्टिव का पढ़ा है क्वेश्चन, तो वही फटक से लिख दो ना, समझा? उसमें फिर आप एमसीक्यू करने जाओगे तो आपका पूरा पंद्रह हम्म, मिनट जो पढ़ा है उसका फायदा ही नहीं उठा पाओगे, क्योंकि वहां पे आपने पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर दिया। अभी फटक से आपको सिर्फ उतारना है पेपर पे, वो क्या है कि वो एक अलग ही स्ट्रगल मारते हो आप, बिकॉज नाउ यू आर डूइंग समथिंग ऑफ फ्रेश, यू आर रीडिंग ऑल्सो एंड यू आर टेकिंग दैट टाइम, सो दैट्स अ बिग लर्निंग आई फील, या। डन एंड डन, दैट्स इट। तो मॉक टेस्ट दिए थे तूने? हाँ मतलब खुद से ही दिए थे। ओके। और आरटीपी एमटीपी कितने अटेम्प्ट के सॉल्व किए थे, और दोनों में किए थे डीटी आईडीटी के, या सिर्फ आईडीटी में, बिकॉज अपन ने लेक्चर डाला था उसका भी? नहीं नहीं, सबके ही किए थे मैंने। ओके, डीटी आईडीटी कितने अटेम्प्ट के, लास्ट तीन हम्म, चार अटेम्प्ट के किए थे? नहीं नहीं, 2 ही अटेम्प्ट के किए थे। दो और ही पेपर अटेम्प्ट? मैंने सबके ही देखे थे। पेपर तो मैंने सबके ही देखे थे, जहाँ से अच्छा, न्यू सिलेबस आया वहां तक सबके देखे थे। ओके फाइन, लवली। Now, just quick last, we will just wrap up now the entire discussion. Just quick comment on the material that we have provided for IDT and how is it useful. And
how did the lectures literally just helped you shift the perspective from not knowing GST to having so much confidence कि you go and just attempt GST in the very first go when you are writing the paper, right? तो अभी CTA तो डालना पड़ेगा भाई, इसी के लिए पूरा पॉडकास्ट हुआ था, तो ये सेक्शन कैसे रह सकता है? तो अभी करिए जरा, एकदम दिल खोल के बेटा, कॉम्प्लीमेंट देना, शर्माना मत बेटा। ये लेक्चर देख के बेटा, ये सेशन देख के बच्चा परचेस करना चाहिए, ले तो ही क्या है, तेरा बोलना वसूल होगा। ओके चलो आ जाओ। हाँ नीलेश सर, अभी सर बोल तो आईडीटी के दिया लिए तो सब आपका ही अभी। सर आईडीटी के लिए तो आपका ही परचेस करना चाहिए, क्योंकि सर आपका फ्लो भी बहुत अच्छा है। जिस वे में आपने चार्ट लिखा है बहुत कुछ यानी अंडरस्टैंड हो जाता है। और जैसे एक बार पढ़ लो तो वो पूरा मतलब दिमाग में यही जाता है एकदम, ओके, कि इसके बाद यही आने वाला है, यही सब आने वाला है, पूरा फ्लो हो जाता है एकदम। तो तो थोड़ा उसके लिए तो सर आपका साइंटिफिक ही हो बेस्ट है। जाता है कि भाई एक इक्वेशन फॉर्म में दे दिया या जो भी है, आपको हाँ याद रह जाता है। एग्जैक्टली, ओके फेयर। हाँ। तो आपने चार्ट बुक यूज किया था, ओसीओ यस, क्यू क्यूएनए क्या यूज किया था आपने? चार्ट बुक भी प्रेफर किया था और ओसीओ भी लास्ट में। अच्छा, तो वो लास्ट दिन पे रिवाइज करने में हेल्प हो जाता है फटाफट से? कैसे हाँ किया हाँ। था लास्ट दिन? आपने हाँ मैराथन सर। अटेंड किया सर था जो मेरा, आपकी या फिर क्वेश्चन खुद बैंक से थी, किया था? नहीं नहीं खुद से किया था, क्योंकि जो पहला जब मैंने पहले परचेस किया तब मैंने आपके लेक्चर का सब एक्सेस लिया था। हम्म, तब मैंने वो देखा था उसमें से, फिर मेरे को ये था कि इधर से करना है। और जो आपका क्वेश्चन बैंक था वो पहले मैं कर चुका था, तो मेरे को मालूम था कि उसी में सब आ ही जाता है, वो सब एडजस्टमेंट आए, इसलिए। फेयर, लवली। मनुश्री, व्हाट अबाउट यू? सर आपके लेक्चर्स ना बहुत क्रिस्प होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं होती। मतलब एक तो जब आप चैप्टर स्टार्ट करते हो ना, आप एक चार्ट दे देते हो कि इसमें ये सेक्शन पढ़ेंगे, उससे सेक्शन नंबर भी याद हो जाते हैं। मुझे अभी तक याद है, मतलब आप पूरा प्रॉपर एक चार्ट देते हो कि 7-1 7-2 7-2 है, ऐसे सेक्शंस पढ़ेंगे। क्या है वो 7-1 तो क्या है? 7-1 सप्लाई के बारे में है, 7-1 से, A B C ऐसे कुछ था। एक 7-1 नंबर, C एक नंबर। शेड्यूल 1 था, करेक्ट, रेडमी शेड्यूल 1 शेड्यूल था, 1। हाँ। हाँ, तो आप पूरा ऐसे चार्ट दे देते हो प्रॉपर कि ये पढ़ेंगे, इस फ्लो में पढ़ेंगे। तो एक प्रॉपर माइंड में चार्ट बन जाता है कि हाँ ऐसे करना है, और वो ना क्लैरिटी देता है बहुत ज्यादा हम्म, कि ऐसे ही होगा। और मेरे को तो पहले जिनसे मैंने क्लासेस ली थी वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता था। मेरी तो मतलब दिमाग में सब कुछ मिक्स हो जाता था कि कर क्या रहे हैं। मैं 7-2 नॉट अ सप्लाई को डीम्ड सप्लाई से इतना कंफ्यूज करती थी। आपकी सही बात क्लासेस है। लेने के बाद मेरे को वो क्लैरिटी मिली कि ये दोनों डिफरेंट सेक्शंस हैं, ये 4 पॉइंट्स इसके हैं, वो उसके हैं। तो वो ओके, क्लैरिटी भी थी। और चार्ट बुक में इट्स लाइक कि आप अगर आईसीए का मॉड्यूल देखोगे तो वो इतने बड़े मॉड्यूल्स हैं। दो दो मतलब है। दो मॉड्यूल्स इतने इतनी ओवर, मतलब जो सेल्फ स्टडी कर रहा है वो रेफर कर सकता है। बट आई डोंट रिकमेंड कि आईसीआई मॉड्यूल करो जीएसटी के लिए। आई वुड रिकमेंड योर चार्ट बुक, मतलब उसमें सब कुछ कवर्ड है। इन मतलब कॉन्साइज भी है, और आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस उतने 45 पेजेस में याद कर जाओ अच्छे से। और वो याद करना भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आपने फ्लो चार्ट की फॉर्म में दे रखा है, और अमेंडमेंट्स को येलो बॉक्स में कर रखा है। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपने लेक्चर के टाइम, जैसे लिमिट्स आती थी एग्जामिशंस में, आपने लिटरली इतना फोकस करवाया था ना कि यहाँ पे अप टू 1,50,000 है, क्योंकि इसका भी ध्यान रखना होता है कि अप टू है, मोर देन है, हाँ, लेस देन है। एक्सीडिंग नहीं है, हाँ हाँ। हाँ, आपने कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस में अप टू 200 वाली लिमिट थी, आपने लिटरली इतना फोकस करवाया था कि इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। लेस देन 200 वाली थी। हाँ जी, हाँ, लेस देन 200 आप करेक्ट। उसमें, और वो करवाया था। तो लिमिट्स तो मेरे को ऐसी याद होगी थी, बस वो अप टू लेस देन मोर देन इस पे खुद भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, खुद भी याद करना पड़ता है। और ओसीओ की बुक में उसमें मॉडरेट से लेके ट्रिकी से ट्रिकी एडजस्टमेंट कवर्ड है। मतलब उसमें एक भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो कवर्ड ना हो। अगर आपने वो कर ली ना अच्छे से, और आप वो सॉल्व कर पा रहे हो, तो आप टैक्स का पेपर कर जाओगे जीएसटी का। मतलब उसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है। Wow, lovely. That's that was actually an amazing एंड my amazing description. Yeah, go ahead. अगर किसी को डाउट भी है ना कि मतलब चार्ट बुक में सब कुछ है भी या नहीं, आप जस्ट चार्ट बुक करके एक बार क्यूएनए करके देखो, अगर आपसे सॉल्व हो रहा है ना तो आप कर लोगे। क्योंकि मेरे को भी पहले डाउट था कि मैं कर भी पाऊंगी Yeah. या नहीं, बट मेरा ये भी था ना कि मैं 2 मॉड्यूल्स पढ़ के भी मेरे से क्वेश्चंस नहीं हो रहे। बट So मैंने वो let's give this a try. यस,
तो जब मैंने चार्ट बुक देखी वो तो मेरे को कॉन्सेप्ट्स भी याद थे, तो और मेरे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे थे। जस्ट गिव इट अ ट्राई कि हाँ अगर आपको डाउट हो रहा है ना, चार्ट बुक पढ़ो और फिर क्यूएनए करो। मेरी गारंटी हो जाएगा अगर आपके कॉन्सेप्ट्स Oh, क्लियर है। lovely. That was actually a good thing because I was about to ask this question to Neil. Okay, do you still think it's a scam or does that make sense, right? But I think you briefed that up pretty amazingly, Manushri. Also, one last question, Manushri. On the last day of the exam, did you attend my marathon or did you choose to do it your own? Please go ahead with that. And how did you revise your entire taxation? मैंने यही प्लान किया था कि मैं सारा खुद करूंगी, क्योंकि Good. मतलब मैं ऐसे That's नहीं a कर good सकती जब decision. तक I really agree. Huh? कि खुद से ना पढ़ो, सेटिस्फेक्शन नहीं होती। बट जब मैं लॉ का पेपर देख के आई थी, मेरा हेडेक हो रहा था बहुत ज्यादा, तो मेरे से कुछ नहीं हो रहा था खुद, तो मैंने आपकी मैराथन स्टार्ट कर दी थी। मैंने आपने एग्जामिशन, आईटीसी, प्लेस ऑफ सप्लाई, बस ये तीनों मैंने मैराथन से Hmm. देखे थे। उसके बाद मैंने अगले दिन सारा जीएसटी खुद किया था बैठ के। गुड मतलब मैंने नाइस मैराथन रेफर नहीं की सो थी। गई थी फिर तू 12 बजे नहीं, पहले सो गई थी। उसके मेरा पहले ही हेडेक हो रहा था तो मेरा एंड व्हेन पूरा डिड दिन यू वेस्ट हो गया। एंड आइडियली व्हेन डिड यू वेक अप देन आई वेक अप एट 6। 6 ओके एंड देन यू स्टार्टेड विद जीएसटी ओनली और व्हाट पहले मैंने पूरा जीएसटी खत्म करने की कोशिश की कि उस दिन मेरा वन डे में पूरा जीएसटी खत्म हो जाए। बट वो हुआ नहीं था, पता नहीं क्यों इतना टाइम लग गया था। मेरे 2 या 3 चैप्टर रह गए थे। तो ओके फिर मैंने नेक्स्ट डे मैंने उन 3 चैप्टर्स को टेकअप नहीं किया। मैंने फिर डीटी स्टार्ट कर दिया था। दिस इज फिर मैंने रियली डीटी नाइस दिस इज रियली गुड फिर मैंने डीटी स्टार्ट कर दिया था, बट फिर डीटी भी नहीं हुआ था। लास्ट डे में मेरा ये हो रहा था कि जीएसटी भी पढ़ा है, डीटी भी पढ़ा है। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैंने जीएसटी की बहुत अच्छे से तैयारी की हुई है एज कम्पेयर टू डीटी। मतलब मैंने वाइवा सेशन सब कुछ अटेंड किया है। तो मैं जीएसटी ही अच्छे से करती हूँ, जो मेरे को पता है कि मैं कर सकती हूँ अभी इस टाइम में। क्योंकि मेरे को पता था कि अगर मैं डीटी भी कर लूँ ना, उतने जितना मेरा टाइम रहेगा, मैं डीटी कंप्लीट नहीं होना नहीं था। हो पाएगा हम हाँ, तो मैंने जीएसटी पूरा फोकस किया और जीएसटी खत्म किया। फिर जो एग्जाम डे था, उस जितना टाइम उसमें रहता था, मैंने सारा डीटी जितना मैं कर सकती थी मैंने वो किया। और इसमें ना, जब डीटी और जीएसटी इकट्ठे रिवाइज किया तो लिमिट्स बहुत कंफ्यूजन हो रही थी, क्योंकि डीटी में अपनी लिमिट्स हैं, अरे जीएसटी में अपनी हाँ लिमिट्स हैं। और मेरा दिमाग मतलब खिचड़ी बन चुकी थी मेरी लिमिट्स की। मैंने सुबह सुबह फिर सुबह उठ के मैंने ना जीएसटी की लिमिट्स लिखी। मैंने कहा मैं जीएसटी की लिमिट्स पे उसकी फोकस अलग करूँ। से एक भेजी थी मैंने पीडीएफ पता है भेजी थी हाँ सर, हाँ हाँ जी सर। पर मेरे को ना ऐसे लिमिट्स याद थी, पर मेरे को अप टू, लेस देन, मोर देन, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रही थी, क्योंकि डीटी में भी है ऐसा। तो फिर हम्म मैंने बस एक बार वो देखनी थी और मैंने लिख लिया था। ये एक पॉइंट है कि ना एग्जाम से पहले या फिर जब एग्जाम्स आने वाले हैं, एक बार ना डीटी और जीएसटी को इकट्ठे रिवाइज जरूर करो। मतलब साथ में वन पॉइंट दैट्स अ फाइव के वेरी साथ गुड पॉइंट एक्चुअली कि वो खिचड़ी पकाओ एक बार दिमाग में हाँ क्योंकि कई बार हमको लगता है वो खिचड़ी है पर हमको एक्चुअली पता है कि सेग्रीगेटेड क्या क्या है जब वो क्वेश्चन पॉप आउट होगा तब जाके हाँ ऑटोमेटिकली वो याद आ जाएगा कि यार इसमें 200 रुपया ही है या इसमें 500 रुपया ही है 1.5 लाख ही है सो कुडोज टू दैट कि भाई आपने अपने आप को संभाला समहाउ एंड लिख दी वो लिमिट जिससे कुछ कॉन्फिडेंस आ जाए बट एक पेज पे हमेशा करके रखो, अप टू, लेस देन, मोर देन, यहाँ पे तो करके ही रखो, करेक्ट क्योंकि इस पे ओके क्वेश्चंस बन सकते हैं और बहुत घुमाएंगे अभी फिर इस आपने बोला है क्वेश्चन। तो मैं ही कर दूंगा वो बच्चों के लिए आप टेंशन मत लो बट दैट्स अ गुड थिंग दैट्स अ गुड फीडबैक बाय द वे आरटीपी एमटीपी सॉल्व किए थे आपने लास्ट अटेम्प्ट्स के नहीं, मैंने नहीं किए थे सर। ओके मैंने फेयर क्योंकि आपने करवा दिए थे जीएसटी के, तो मैंने खुद से हाँ कुछ नहीं किया था। ओके तो लवली आई थिंक दैट्स इट लास्ट डे डन एंड वन मोर थिंग ओसीओ क्यू तूने नहीं किया था तूने क्यूएनए किया था क्या किया था मैंने ओसीओ के जब आप वाइवा सेशंस लेते थे, मैंने तब कर लिया तब था। करवा दिए थे ओके एंड यू हैड गॉन थ्रू द एडजस्टमेंट और लास्ट डे पे तूने क्यूएनए रिवाइज किया था तो टाइम ही नहीं मिला। करना था, ओके पर मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए थे, जो मुझे ओके पता है कि ये अच्छे क्वेश्चंस है दिमाग में, तो वो मैंने कर लिए थे थोड़े तो बहुत। मेन तो वो चार्ट बुक ही रखा था तूने और वही यस यस कॉन्सेप्ट ही रिवाइज करने होते बेसिकली यस। lovely quickly and then we have Neil I think Neil बाकी है अपना हाँ Neil go ahead tell me Yes, sir. So, firstly, I like the thing about your lectures is that fast track lectures में, as you said, वो फालतू की बकवास नहीं होती, no motivation and all. It's like to the point, ऐसा up to the point and एकदम exam oriented है. You neither do you get too deep into a concept. जितना necessary है उतना it's more than enough. So that saves our time and that is pretty helpful also because कम कंटेंट सिखाते हो पर अच्छे से सिखाते हो. And the thing about the material. अब तो इतना कंफर्मेशन लेके मुझे समझ गया कि ओके इट्स कंप्लीटली रिलायबल और मतलब 50 मार्क यू कैन कंप्लीटली रिलाई ऑन दिस
45 पेज का चार्ट बुक एंड द थिंग इज the Q&A book, as I said, the good thing about the Q&A and chart book like this, the chart book में the amendments being highlighted in yellow and at some points you're even giving an example and मतलब with the flow सब समझ में आता है ना, तो that once you go through it again and again वो photographic memory develop होता है कि हाँ चलो before the chapter it's like ये sem है 1. ये है करेक्ट यस आई थिंक मनुश्री So said that that. chart say that helps a lot. And Q&A book का if you see, again the questions जो latest amendment वाले questions are in yellow and every I think question is also compiled section wise compile किया. तो if I want to refer a concept, I want to test my concept, I can just refer to the book and वो concept मेरा immediately test हो जाता है. So that's very helpful on the last day. ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको, वो मेहनत किया है मैंने आपके एंड पे कि वो भी Exactly. सेक्शन वाइज रखा था मैंने. यस तो मतलब that helps a lot. So material के लिए मतलब this was like more than enough and like enough to score an exemption in taxation मतलब for me. एंड द लास्ट डे हाउ डिड दैट गो? अगेन मेरा हर पेपर के पहले का लास्ट स्क्रू अप हुआ था बट आई हेल्प माई सेल्फ मतलब आई मेरा भी आई गेस लास्ट डे पे पूरा डीटी बचा था आईडीटी भी आई डोंट नो बट आईडीटी तो मैंने एक भी सेकंड, दो लॉ की एग्जाम देखी है फिर क्या चालू किया था तूने? मैंने ऑडिट पढ़ना चालू किया था आई ट्राइड अ स्टंट कि ऑडिट थोड़ा बचा है ऑडिट पढ़ेंगे डीटी टैक्स हो जाएगा ओके बिकॉज ओके हो जाएगा टैक्स. 3 दिन था हुआ शायद. हाँ हाँ हुआ नहीं था लेकिन आई देन सुबह सुबह आईडीटी चालू किया फिर आईडीटी बहुत स्लो पेस में गया एंड देन फिर आईडीटी आई थॉट एक दिन में हो जाएगा नहीं हुआ एंड देन फिर ऑलमोस्ट रात तक कैसे ना कैसे खींच के खत्म किया एंड देन आई फिनिश्ड आईडीटी वो रात को एंड नेक्स्ट डे फिर सुबह डीटी खत्म किया एंड बट फिर सीधा एग्जाम डे के दिन मैंने बस आईडीटी खोला और आईडीटी का बस स्टैट्यूटरी अपडेट्स अमेंडमेंट्स एंड उसका क्वेश्चंस देखेगा एंड बट जो दो फर्स्ट डे मैंने आईडीटी रिवाइज किया ना आई रिवाइज इवन क्यूएनए के सारे क्वेश्चंस ठीक है क्यूएनए के सारे क्वेश्चंस आई डिड ट्वाइस एंड वंस आई हैड रिटन आल्सो तो मतलब इट वाज कंप्लीटली पूरी इन माय तैयारी हेड करी थी इस बार. यस यस या सो दैट्स इट Okay, lovely. Taxation या done. And did you refer the Q&A book or OCOQ book? no I referred the Q&A book only Q&A and chat bus nothing else Lovely, lovely. So in that last day also, it's easier to revise because you've already read the same material yeah while you were studying. So it's even easier to pick up those charts. yeah मतलब again the photographic memory develops मतलब you are just in the flow कि हाँ you will yourself recall कि हाँ इधर ये आता है इधर ये था Makes that sense. helps Done. Rasesh, you go next. Sir, just a small point where I will throw the light on. Sorry, sir. Just one point I'll like to throw my light. The icing on the cake was clearly the FMM series. अच्छा वो देखा था क्या? Yes, sir. Because after 2 days Shots. of preparations, exactly after 2 days of preparations were over, I actually watched the entire video of FMM series और उसमें सर सारे monetary limits covered थे. So ultimately at the end of the day, I did not worry about the monetary limits. And sir, this entire Q&A book जो पूरा solve किया 2-3 बार, and there was not even one paper from 2018 onwards जिसका sum इसमें covered नहीं है. MTP, RTP, everything was very very exhaustively covered. And when we were solving this Q&A book and when we were heading towards solving MTP, RTP, तो बाद में ऐसा लग रहा था अरे ये तो आया हुआ है, wasting time. Let's move ahead. दूसरे chapter में चलते हैं. So that was very very helpful. So Q&A book को अगर आपने एक बार thoroughly solve किया है once or twice, then it should boost up your confidence. And there's nothing more you can do. हम सब कुछ cover कर ही चुके हैं इसमें. So there's no area which is left uncovered. And what about the chart book? Yes, a chart book also was very, very exhaustive. And lectures, I'll just add one small point that when these chapters are very big ITC and exemption, so you have to actually keep the crowd engaged. So आपके जो small points थे उसमें आपके जो small points थे उसमें for example vehicle का Harvey 25 Specter cc. का फोटो exemption में ऐड करना है, and then वो स्टोरी फार्मर की कि फार्मर दूध पीता था, फुल ग्रेन्स खाता था, बाद में मैन्योर किया था उसने, बाद में न्यूज़पेपर से उसने हाथ साफ किए थे अपने. वो जो पूरी स्टोरी थी, क्योंकि बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स होते सर एग्जामिनेशन और आईटीसी के 1-1.5 घंटे तक, तो ऑलरेडी आईडीटी से हमको बहुत कम इंटरेस्ट है उसमें, कैसे हमको खींचना चाहिए वो लेक्चर्स. सो दैट वाज अ वेरी बिग पार्ट. और ही करण जोहर एनिमल, दैट्स सो ट्रू. एग्जैक्टली. एंड सर वो आई गेस जस्टिन बीबर का वो एनआरटीपी का पूरा एग्जांपल, वो भी अभी माइंड में सब याद आ रहा है. और हेल्थ केयर सर्विस में भी कुछ था पर वो बोलना मत क्योंकि वो मेरे डीटीपी ने डाल दिया था. सर कंट्रोवर्शियल हो जाएगा. करेक्ट.
कि शायद पता नहीं, वो समय रैनो को बहुत देख रहा है आजकल. But nice. I think all those things did that add up in helping you all remember the concept कि यार Exactly. ONDC वाला और ही है और करण जौहर वाला वो अमेंडमेंट है, something like Immovable that. property. हम्म. 093 वाला सर, RCM. 93 RCM, हाँ. हाँ. Renting of immovable property. Exactly. Okay. Lovely. That's great. And last दिन पे तूने क्या किया था? सर लास्ट दिन पे सबसे पहले तो आईडीटी खत्म किया था सबसे पहले, देन डीटी खत्म किया बाद में. जैसे मनुष्य ने कहा कि ऑल दीज आईडीटी डीटी का 100 मार्क कवरेज एक साथ करना ही चाहिए बिफोर यू गो फॉर एग्जाम्स, देन ओनली सर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा. वरना वो यू जस्ट कंप्लीटली जंबल अप विद नंबर्स की इसकी लिमिट ये थी, इसकी लिमिट वो थी, स्लैब रेट्स में ये रेट ऑफ टैक्स लगता है, पेमेंट ऑफ टैक्स में 18% एंड 25% लगता है, ईवे बिल में क्या लिमिट्स है. सो इट्स कंप्लीटली वेरी jumbled up scenario. But if you individually do it and then compile it together, then only you are paper ready, or else you might face problems. That's what the approach is. Lovely. Sir, we've spoken या बाकी है ना तेरा? यस सर, यस सर. हाँ, प्लीज गो अहेड सर. सर मटेरियल तो मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरी फेवरेट तो ओसीओ की बुक है. उसको कभी कभार अभी भी मन करता है कि मैं खोल के एक बार देख लूँ उसको. तो ओसीओ की बुक वाज वेरी हेल्पफुल. और वाइवा सेशंस मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा. कोई अगर मेरे जैसा है लाइक बिलो एवरेज स्टूडेंट इन आईडीटी, तो उसको वाइवा सेशंस तो लाइक करने ही करने चाहिए. मेरी ओनली मोटिवेशन आईडीटी पढ़ने की थी कि भाई अब अपनी बेइज्जती ना करा लूं मैं वाइवा में. तो ओह मैं वाओ, नाइस. तो मैं वाइवा सेशंस लाइक लिए, फिर अटेंड किया एंड हो गया काम. There it is. या 65, 63, 64, 64. 64. Lovely. यस. एंड Okay. क्यूएनए बुक तो मैंने ली थी, और बट क्यूएनए मैंने पूरी सॉल्व नहीं करी क्योंकि उसमें ज्यादा बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे बहुत Q&A सारे के. क्वेश्चंस भी होते हैं ना, तो सॉल्व करने का मन नहीं करता. बट Fair. ओसीओ की बुक में जैसे आपका आईटीसी वाला कम चैप्टर था. questions. हाँ, उसमें ऐसे एक पूरा क्वेश्चन था जिसमें सारे पॉइंट्स कवर थे. तो 17 वो, में. हाँ, तो मैं उसको ऐसे कवर करता था, फिर उसमें मार्क करता था कौन सा ब्लॉक्ड है, कौन सा अवेल कर सकते हैं. मैं फिर उसको पूरा काटता था, फिर तीसरी बार दूसरी बार सॉल्व कर करके कि हाँ ये अवेल्ड है, इसमें ब्लॉक्ड है, ऐसे कर करके सॉल्व करता था. तो वो था. हम्म. मैंने मैंने लेक्चर्स नहीं लिए, मैंने कहीं से रिवीजन वीडियोस नहीं ली, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इस बार सेल्फ स्टडी पे था कि सेल्फ स्टडी Fair, करेंगे. fair, fair. इवन लॉ के एग्जाम के बाद मैंने सोचा था कि मैं किसी की मैराथन देख लूंगा, या मैराथन पूरी वो जो चलती है 2-3 बजे तक. बट फिर मैंने बोला कि नहीं, ये सेल्फ स्टडी करते हैं, ओसीयू की बुक और क्यूएनए बुक ही उठाते, उससे अपनी रियल पिक्चर पता चलेगी. Lovely. और फिर मैंने एक मॉक टेस्ट भी दे दिया था, Okay. और तो उससे मेरा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल इट वाज. Done. हाँ. Thanks a lot, sir. Nilesh, lastly. Nilesh हो गया? यस सर, हो गया. Okay, okay. I think this was great, guys. Thanks a lot for just coming up, showing up, and contributing to so many people's journey. Because I think, it's a saying at the end of the day. Einstein ने ही शायद बोला था, ये न्यूटन ने बोला था, वो आप चैट जीपीटी कर लेना, कि stupid people are those who learn from their mistakes. It's the wise who learns from others, right? And it's amazing because you all have a graph. You all have a graph of failing or not liking GST to finally attempting it in the very first go while you were writing the paper and finally securing an exemption. And I'm sure that people out there can really learn everything, right from the strategies to their 1.5 day thing कि कैसे revise करना है, to referring the material with respect to DT and IDT. And I think it's extremely inspiring because in CA journey, the only time you will pass, and I can clearly relate, is when you overcome your fears. When you do things that you have not done up till now, when you literally go back and see कि यार एक चीज है और वो मेरा पैटर्न बन गया है कि मैं ये नहीं कर रहा हूं. And when you address that, it can be excessive use of social media, it can be omitting certain chapters or a subject altogether. Once you stop doing that, right, and once you start rectifying those actions, is exactly the attempt when you will pass, right? And we've seen ample of those examples out here. And yeah, thanks a lot, guys. We have made an amazing express batch.
in just 30 hours, where we are covering the entire OCOQ and the entire chart book. And I am sure that after learning this entire experience, people will clearly have access to them and invest in them, because at the end of the day, a human does feel यार ये लेना चाहिए या वो करना चाहिए when they realize that यार इसका फायदा किसी को हुआ है, right? And there is a precedent कि यार ये follow करने से कोई पास हुआ है, कोई exemption आया है in the toughest paper of taxation in the history of inter CA. So thanks a lot, guys. Kudos to your journey. People who have cleared both the groups, you are a CA finalist. You truly deserve. And I would love to meet you all in CA final. And people who have yet to clear, I'm sure you are definitely clearing in the January attempt. And I'm waiting for your text. Yes, sir. CA finalist हो गए और अब आपके I don't know what, November 27, right? या May 28 के बैच में enroll कर दिया है, right? Thanks a lot, guys. It was a pleasure taking out time and speaking to you all. And yeah, really lightens up my mood and brings a big smile to my face. And I'll keep doing what I'm doing. Just gives me more courage and more conviction in what I'm doing, right? Thanks a lot, guys. Yeah. Yes. Thanks a lot, Manushri, Thank you, Sarsh, sir. Rasesh, Neil. Thank you, sir. Thank Yes, you. sir. Bye. And yeah.